I was a villain, crude villain, not a vulgar villain. काटती थी लड़की हाथ छोड़ाने के लिए. हाँ. काटो जाने मन, काटो जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो. अब एक लड़की को क्या उसके नाम से बुलाओ, मैं से उठा के लाए हैं तो छमिया इधर आओ. आपके जो कैरेक्टर्स थे उसमें कोई ग्रे शेड नहीं था, पूरा का पूरा इवल. शक्ल से ही लगता था. अभी ये आया, इसकी शक्ल में लिखा हुआ है क्या कहना चाहता है. लुकिंग एट मी यू फील क्रीपी ना. नाम तब मेरा सुनील दत्त साहब ने चेंज कर दिया. बोले यार गोपाल, जो जब ड्यूरिंग शूटिंग ही चेंज माय नेम फ्रॉम गोपाल टू रंजीत. गोपाल में क्या? वो बोले दूध वाला भैया लगता है. You don't smoke, you don't drink, you don't. I don't know the taste of non-veg. On screen, every movie you have a drink in your hand and probably one haddi also. हड्डी हड्डा होता था पूरा. बकरे की टांग होती थी. रात को नहाने के बाद भी my body used to smell of mutton. तो फिर मैंने एक दिन अपने आर्ट डायरेक्टर को पूछा, यार can't you make some chicken or some बकरे for me and all that kind of stuff. प्लास्टर ऑफ पेरिस के. तो उसने आर्ट डायरेक्टर ने बना दिया बकरा. तो मेरा प्रोड्यूसर बहुत खुश. मैंने उसको बोला, कपूर साहब अभी ये बकरे वगैरह आप मत मंगाओ, बड़ा खर्चा होता है, हर रोज है, ये है वो है, कल सब बकरा भेजेगा आपको. जब माधुरी दीक्षित को ये बताया गया था रंजीत विल बी मोलेस्टिंग यू, वो रो पड़ी थी. अरे रो पड़ी नहीं, उसने तो मना ही कर दिया था, रो रही थी. Molestation is a part of our job, you know. The villain is not bad. I got fed up of doing this, pulling sarees and rapes and all the 8 films every day in Bangalore, every night in Bombay. I don't believe I'm doing this interview. एक दिन में मैंने 8 फिल्मों की शूटिंग की है. इधर मैं डाकू बना हुआ हूँ, ये बाजू वाले कमरे में मैं वो बना हुआ हूँ इंस्पेक्टर. I lost my father, first death in the family. I went to shoot. I used to howl in the makeup room and then chilled soda होता था ice box में. I used to splash my eyes from the bottom of my heart. I never, exploited anybody. I had no godfather till today. Namaste, Jai Hind. You're watching another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, and you will listen to a number of things about the location of this podcast. It's shot in Sun and Sand Hotel. Now, this hotel is where a lot of films used to be shot, and my guest today has some of the anecdotes of his life which were related to this hotel. Who's my guest today? He's the yesteryear's film actor Ranjit. Now, if you've seen movies of the 60s and 70s, there was this villain who had no shades of grey. He was totally dark. He had creepy dialogues to say, and that was Ranjit. If you remember, every time you saw the movies of the 60s, 70s, and even till the 80s, whenever you heard that sound, dishum dishum, there was Ranjit. There was Ranjit who was so bad that he had to be either killed or sent to the prison in every film of his. And that was where you saw evil losing and good winning. And till that didn't happen, Ranjit was there in every film. Thank you so much कि आप हमारे शो में आए. अब मैं आपको रंजीत साहब कहूँ कि बेदी साहब कहूँ, किस नाम से आपको बुलाऊँ? Actually, most of the people have come to know me as my nickname गोली. तो इंडस्ट्री में तो सारे मुझे प्यार से गोली बुलाते हैं, जितने हमारे थे और जो हैं. अब पब्लिक में तो रंजीत बोलना ही पड़ता है, वो भी बोलते हैं. तो मुझे बताइए. एंड आप प्यार से कुछ भी बुला सकते हैं, गोली भी बुला सकते हैं. गोली का रिलेट पता नहीं, ऑडियंस पता नहीं करे नहीं करे. ओके. तो एंड तीनों नाम के आप मुझे बताइए. हिस्ट्री ये है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली. I was born in Amritsar, brought up in Delhi. So I was a very famous footballer, goalkeeper. स्कूल में कि कॉलेज में? हिंदू कॉलेज में था. हिंदू कॉलेज में. And I remember I played with Frontier Club also, with Sabroshara Club, and no, दिल्ली में थे. अभी तो मुझे 55 साल, more than 55 years in Bombay. And तो सब मेरा नाम था गोली लिखते. इवन प्रेस में भी छोटा स्निपेट्स आते थे उन दिनों में, कोई मैच के तो गोली लिखते थे. तो कोई डजंट मैटर, पता नहीं है. तो इधर जो माँ बाप ने नाम दिया वो गोपाल सिंह बेदी. सिंह नहीं, आई एम नॉट अ सरदार, आई एम बेदी. वो है बेदी फैमिली. गुरु नानक भी सोचते होंगे ये कैसा आदमी बेदी पैदा किया है, साड़ियाँ खींचता रहता है. एनीवे, तो I've seen my great-grandfather. He was not a Sikh, so I can say, that with the authority. There's nothing wrong to be a Sikh, They're all good. My wife is a Sikhni.
सो गोलकीपर से गोली हो गया, इधर आ गया बॉम्बे में, तो फर्स्ट टाइम आई शोड देम सम शॉट्स सन एंड सैंड होटल वेयर आई वाज पुट अप. फर्स्ट नाइट तो मेरी चेतन साहब के घर में थी. सेकंड नाइट आई वाज मूव टू दिस होटल एंड दिस वाज फॉर मी एज ए होम फॉर मेनी ईयर्स. तो माई फूड यूज टू गो फ्रॉम हियर. एक्टर भी बन गए थे ना. तो आप दिल्ली से बॉम्बे आए तो पहले आप एक रात यू वर समवेयर एल्स, उसके बाद आप सन एंड सैंड में आ गए. दिल्ली से बॉम्बे कैसे आया? एक्चुअली आई विल हैव टू टेल यू, अदरवाइज जी रिवाइंड करते हैं. नॉट फुल्ली रिवाइंडेड. तो आई हैड जॉइंड एयरफोर्स. कि हम लोग एक दिन कॉलेज में बैठे हुए थे, 4 लड़के थे, अब दोस्त थे. वो बोले यार ये इंडियन एयरफोर्स पायलट के लिए जो कोर्स होता है, इसकी जो रिजल्ट है 10% ऑल ओवर इंडिया, 12% वेरी टफ एंड ऑल दैट. तो बोला ठीक है भरते देखते क्या होता है. तो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम वी ऑल 4 ऑफ अस वेंट देयर. वो UPSC समथिंग होता है. हाँ. वहाँ से फॉर्म वगैरह लिया, पैसे अपनी जेब से दिए, सब कुछ दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. हाँ, जो पार्लियामेंट हाउस के पास जी. तो वहाँ से लेके आए, हमने भर दिया फॉर्म. फिर वी गॉट through from the written test and then we had to go for the SSB in Jabalpur. All 4 of 70 us. Yeah, this was in 67 end. अच्छा. 68 में बॉम्बे आ गया था मैं. ओके. या तो 68 से इधर ही हूँ. तो 67 एंड में वहाँ गया. तो आई वाज देयर फॉर 4 months ओनली, यू नो. सो माय ट्रेनिंग सेंटर वाज कोयम्बटूर. एंड हमारे इंस्ट्रक्टर एक सरदार जी थे. और आपको मालूम है कैंटोनमेंट में ये ऑफिसर्स के बंगले होते हैं, फैमिलीज वहीं रहती हैं. तो वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड जिम एवरीथिंग एंड ऑल दैट. तो सरदार जी की एक बिटिया थी, वो शी यूज्ड टू जॉइन अस एंड ऑल दैट, यू नो. और भी 1-2 लेडीज होती थी. आप पायलट बनने गए थे कि बिटियों को देखने गए थे? किसी को नहीं देखने गया, मैं अभी भी नहीं देखता हूँ. सच्ची बोलता हूँ. तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो बिटिया जो थी उनकी, उन्होंने सोचा कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ. नहीं मार रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में था ही नहीं, यू नो. आई प्रॉमिस यू, बिलीव मी, यू नो. आई वाज वेरी शाय तो अभी भी हूँ मैं, थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है. एंड उन्होंने कुछ ही मिसअंडरस्टूड एंड ही गेव मी अ वार्निंग इन पंजाबी. और गालियाँ वाली निकालते हैं ना माँ बहन में, which is very normal for the Punjabis and all that. हर लैंग्वेज में होता है वैसे. नहीं, वो खासियत है पंजाबी में. नहीं है, गुजराती में तो बहुत है. मुझे खुद को शर्म आ रही थी, किसी गुजराती फैमिली में गया था, अच्छे बच्चे बोले थे, वो कुछ यूज़ करते, दैट इज़ प्यार से यूज़ करते हो. हाँ, तो आपको गालियाँ पड़ी? गालियाँ पड़ी एंड ही वार्नड मी. उसने बोला कि इफ़ आई सी यू विद इन द विसिनिटी ऑफ 100 yards ऑफ माई डॉटर, I'll ruin your career. और माँ बहन की गाली निकाल दी उसने. तो हम तो फॉर फन गए थे ना. एंड मैंने उनको वैसे ही बोल दिया ना, पंजाबी में ही. गालियाँ तो आती थी. फुटबॉल में बहुत गालियाँ निकालनी पड़ती थी ना, कि प्लेयर कोई गड़बड़ करता था घर में. दिल्ली बॉय, नॉट दिल्ली बॉय, अदरवाइज वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली. इन माई लाइफ वी हैड नेवर सीन. हमारे घर में लहसुन, काली दाल वगैरह, ये जितने भी तामसी फूड बोलते हैं इसको, जिसमें नो यूथ को नहीं देते वो लोग. और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, बस दूध दही में पले हुए थे हम लोग. तो सरदार जी को वैसे बोल दिया. तो ही वॉज अबाउट टू रेज हिज हैंड, बट ही रियलाइज्ड कि शायद आई माइट गिव इट बैक टू हिम द सेम वे. तो कट शॉर्ट, खत्म. My file was, you know, all damage, disciplinary action, flana, dingda, ye, wo. And I remember very clearly that there was one air marshal chief थे जो OP मेहरा थे कोई बिल्कुल. ठीक है. तो मैं एक दिन कनॉट प्लेस गोल्फ लिंक्स में गया, मेरा दोस्त रहता था वहाँ पर. तो मैंने बोला कि चलो कॉफ़ी शॉफ़ी पीते. तो उनके घर में छोटी सी पार्टी चल रही थी. तो मैं बोला जब तक तू तैयार होता है तो एक काम करता, मैं अंकल को पैरी पैना भरा करके आ जाता हूँ. तो मैं नीचे गया तो 8-10 लोग थे, उनके कोई गेस्ट वेस्ट अच्छे थे. तो ओ सुना पता क्या हाल है, एयरफोर्स में क्या हो रहा है भाई जी, उन्होंने निकाल दिया मेरे को उन्होंने. फिर ही वॉज कंसर्न, बोलना था ना, हम मेरा सब तो मिलते रहते हैं, ये है वो है फलाना फलाना. एनीवे मैं जो हो गया कोई गल नहीं. सो I was about to leave.
He said we are going to Connaught Place for coffee shop and all that. Wranglers एक होता था उधर, जीन्स की दुकान, नहीं Wranglers और नरूला सब रेस्टोरेंट अच्छा, used to be there. restaurant, okay. रेस्टोरेंट होता था, उसी कॉफी शॉप बढ़िया होती थी. अच्छा. Wrangler था Connaught Place में अंदर ही था मेरे. I don't इनर know. सर्कल में, मुझे याद नहीं. इनर सर्कल में. आप कभी घूमी नहीं होगी ना. मैं 60s में तो नहीं घूमी. तो रंजीत को मिले होते तो घुमा देता. Anyway, cutting crudely, तो मैं जैसे टर्न किया तो somebody tapped. So I looked back. So very good looking guy, the scarf and blazer and a cigarette holder. Hey young man, you like to work in a film? हमने सुना हुआ था दिल्ली में कि ये बॉम्बे वाले बड़े गड़बड़ आदमी होते हैं. ये आते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, एक ऐसे छोटा सा ऐड दे देते हैं और उधर लड़के लड़कियों की लाइन लग जाती है कि नया लड़का नई लड़की चाहिए. तो सुना हुआ था. And believe me, Guide was the first film which I saw in my life. Okay. Being a footballer, being a player, एक मेरे को कॉम्प्लेक्स था कि शायद मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, स्टेमिना खत्म हो जाएगा if I see all this movies and all that. और घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना. हाँ, बेदी परिवार वैसे ही मैं I would think कि नहीं, this बड़ा family strict है. स्ट्रिक्ट तो नहीं, बड़ा प्यार बहुत था, लेकिन वो कल्चर नहीं था, पिक्चरों को देखना, अपना टीवी भी था नहीं, कुछ समथिंग लाइक दैट. अब उसने मुझे ऑफर दिया, जो लाइक टू वर्क इन ए फिल्म, तो मैं बोला वैसे ही होगा. तो ऐसे मैं ऐसे श्रग कर ही रहा था तो ही गेव मी हिज कार्ड, नाम हम लिखा था ठाकुर रणवीर सिंह. वो कोटा का था, बट ही वॉज बेस्ड इन इंग्लैंड एंड हॉलीवुड, विच आई डिडंट नो. All these big stars like Dilip साहब, राज साहब और सुनील दत्त साहब, देव साहब, ये सब जब भी यूरोप जाते थे, he was the only Indian guy who was connected with the glamour industry, you know. अच्छा. तो फिर he used to entertain them. रईस भी था, अच्छा था. तो जब वो आता था तो ये लोग उसकी देखभाल करते थे, hospitality, returning and all that. तो कटिंग रोडली उसने बुलाया. तो there is a hotel called Claridge's in Delhi. He was staying there. तो मैं अपना किसी को बोला नहीं, यार दोस्त को तो घर पे तो सवाल नहीं, यार दोस्त को भी नहीं, तो क्यों पीछे से मजाक टांग खींच देना, देख दे ये एक्टर बनेगा, इसी शक्ल देखना है रहा, ये देख चलता कैसे है ना, मजाक करते थे. तो मैंने किसी को नहीं बोला. एंड आई वेंट टू हिम, वी हैड लंच एंड ही नरेटेड अ सब्जेक्ट टू मी. एंड द सब्जेक्ट वाज टू बी मेड इन इंग्लिश एंड हिंदी. अच्छा. And that was called Zindagi Ki Rahein, in English Roads of Life. अच्छा. It was based on truck driver's life. वो रातों रात चलते हैं, ढाबों में रहते हैं, घरों से कितनी दूर, all that. और मेरा रोल था वो जो उनके साथ क्लीनर होता ना, आजकल तो बटन से हो जाता है, उस दिनों में अंदर हैंडल डालते थे, मतलब उसको घुमाना पड़ता था. फिर जब ट्रक स्टार्ट हो जाता था तो भाग के चढ़ जाता था. तो he wanted a cleaner, like a worker type. So I was fit as fiddle, you know, all that kind of stuff. रंग भी आपको मालूम है जैसा भी है, तो आप समझ सकते हैं, काला फला जरा सांवला था कुछ. तो he found me fit for that role. And he said, I'm making this film. Sunil Dutt is my friend. Devanand, my friend. सब बता दिया उसने. मैं बोला फेंक रहा होगा और क्या करेगा, या फ्रॉड है, कुछ तो अपने बारे में बोलेगा ना. नहीं, सच्ची बोलता हूँ. It's also very Delhi trait not to believe. जब ऐसा करते हैं फिर वहाँ पर, मुझे आई हैव सीन विद माई ओन आइज, लड़के लड़कियाँ एक फुल साइज फोटोग्राफ, एक प्रोफाइल, एक फ्रंट एंड ऑल दैट, लेकिन लाइन लगी होती थी. सो आई रिमेंबर अशोका होटल में ये लोग, इनको कमरा वमरा मिल जाता था कुछ भी, तो वहाँ पर जाते थे लड़के लड़कियाँ, वो उनको एक्सप्लॉइट भी करते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, आई नो, बट आई एम टॉकिंग होता है ना टोपी बाज बोलते हैं जिनको. तो वो सुना हुआ था. तो मैं बोला मेरा क्या कर लेगा, देखते हैं. तो उसने मुझे कहानी वानी सुनाई, सब कुछ सुनाई, और उसके बाद बोला कि आई साइंड मिस्टर जयंत, ये अमजद भाई के फादर साहब थे. ही वाज अ वेरी बिग एक्टर. He used to look like that typical Peshawari kind of a look. हाँ जी, थे पठानी थे, तो और लंबे भी, लंबे कद के, बिल्कुल. तो उनको ट्रक ड्राइवर के बड़े गोरे से और गोरे भी, वेरी रीगल लुकिंग, है ना. तो और उसके लिए साइन किया था. दिल्ली में एक मोती सिनेमा है, चांदनी चौक में कहीं. जी जी. उनकी द बेटी ऑफ दैट फैमिली वाज, ही हैड साइंड एज द हीरोइन. अच्छा.
तो गोपाल को भी कर लिया उन्होंने। नहीं, अभी साइन नहीं हुआ। हाँ। जरा अभी गुफ्तगू चालू उर्दू में जी। तो उसके बाद में बोला कि अच्छा मैं जा रहा हूँ वापस, आई विल कॉल यू। मैं बोला शायद कुछ बोलेगा पैसे वैसे ही हो, मैं शक्ल से तो नहीं लगता है। एंड वो चला गया, कहता आई विल कॉल यू, डन। और 2-3 महीने हुए, कोई नो न्यूज़। मैं बोला जान बची। तो एक दिन वो पोस्ट कार्ड होता है ना पीले रंग का, वो 3 शेर होते हैं उसपे पीले रंग का, करेक्ट, छोटा। आई रिमेम्बर, आई नो। एंड डियर राज, he had started addressing me as not Gopal, डियर राज, वो करेक्टर का नाम था। अच्छा। राजू था वो। डियर राज, this I'm staying with Chetan Anand, I'm his guest, and my friends have advised me not to make my first film with a new body, new girl and all that, because I'm also new as a director, producer. तो the other role, you know the whole story, वो कर रहा है तो आ जाओ, I'm sending you the ticket. ओके। हाँ, तो ऐसे ऑफर आई घर में। फिर आपने झूठ बोला। मतलब देखते हैं, फ्री थे ना, कॉलेज तो छोड़ दिया था इन बिटवीन द माई ट्रेनिंग। अच्छा। आई हैड टू लीव माई कॉलेज ना, 4 months के बीच में मैं चला गया था उधर, यू नो। तो अभी क्या हुआ कि घर में झूठ बोला कि अभी वो अपनी टीम जा रही है, महाराष्ट्र में मैचेस है, फलाना। तो तू तो कॉलेज में तो है नहीं अभी, तो अभी कैसे है? मैंने और टीम के साथ में मुझे बुलाते हैं, मैं आज कल भी जाता हूँ उधर, कॉलेज में जाता हूँ, बैठता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जाओ। दे हैड कॉन्फिडेंस इन मी एंड ऑल दैट। आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। अब सुनीता जी, हम वहाँ से आ गए। मेरी माँ ने जाने से पहले मेरे गले में सोने की चेन, एक अंगूठी, एक वो पाते फिलिप की घड़ी थी, आई नेवर वैल्यूड, वो इधर ही मैं गुम कर दी। तो मैं बोला चाय जी बुलाते हैं पंजाबी में ना, माँ को हम तो बुलाते थे कि चाय जी की कर दे पे, इसको कौन संभालेगा इन ऑल दैट। और नहीं पुत्र, और मुंबई च बहुत ठग होते हैं, ये होते हैं, जेब कतरे होते हैं, सुना हुआ है, कुछ जेब वेब कट जाएगी तो कुछ बेच बाच के आ तो सकता है ना वापस। हाउ स्वीट ऑफ द कंसर्न, यू नो। ओके ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जमाना तो था नहीं। कहाँ क्रेडिट कार्ड का, बिल्कुल ही नहीं। क्रेडिट कार्ड तो अभी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। आई स्वेयर, I don't have my life insurance, I don't have medical claim, I don't have any credit card, and I don't sign any checks or this thing. बीबी के ऊपर सब कुछ दे दिया हुआ है, पहले सेक्रेटरी को दिया हुआ था on a stamp paper. तो I'm not materialistic, you know, पर जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। जब घर चाहिए था, सबसे पहले गाड़ी नहीं है, गराज नहीं है, लेकिन घर ले लिया है, all that. इस तरह लाइफ शुरू हो गई। तो what I'll come to the point, बॉम्बे की जर्नी। अभी ये आ गया मैं, तो फर्स्ट नाइट ही रिसीव मी एट द एयरपोर्ट एंड ही टुक मी टू चेतन साहब शैक। ये सन एंड सैंड के एंड में, उधर बीच के एंड पे उनका घर था, रुइया पार्क पे। तो गोएनिस टाइप शैक होते हैं ना, जो बीच हाउसेस वगैरह होते हैं, अरिस्टोक्रेट टाइप फेस उनका, बड़ा गुड लुकिंग। और मैंने क्या हुआ, रोनी ने जब मुझे मिला था, कहते यार तुम ना तो तुम्हें थिएटर मालूम है, ना स्टेज मालूम है, ना रामलीला मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तुम कम से कम पिक्चरें तो देखा करो। रॉनी कौन है? वही जो रणबीर सिंह जिसका नाम अच्छा, रणबीर, ओके। सो आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी डे। अच्छा। आई स्टॉप मीटिंग ऑल फुटबॉल सिंग एंड ऑल दैट, सुबह हर रोज जाता था। ओके। तो हर रोज, एंड ही वाज वेरी वेल नोन इन द सोशल सर्कल ऑफ दिल्ली, सोशलाइट्स जितने भी थे ना। अच्छा। तो हर रोज किसी ना किसी के घर में डिनर वगैरह होता था, दारू वारू चलता था उधर। एयरफोर्स में थोड़ा रम पकड़ लिया था हमने। अब क्या हुआ, तो अब आ गया मैं, तो ही रिसीव्ड मी एंड वी वेंट टू चेतन साहब शैक। ऑन द वे आई नेवर आस्क्ड हिम वेयर आई एम गोइंग एंड ऑल दैट, बिकॉज़ ही हैड टोल्ड मी ही इज स्टेइंग देयर। तो आई बीइंग क्वाइट टाइप, नॉट टॉकिंग मच एंड ऑल दैट। तो मैं देख रहा था बॉम्बे कैसी होती है। तो शाम था, शाम का तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। तो मुझे तो ऑर्डिनरी सिटी जैसे होती है वो लगी। अंदर गए तो बहुत डिम लाइट, बोर्ड लाइटिंग होती है ना, या रोमांटिक टाइप जिसको बोलते हैं, बाद में पता लगा। तो मैं बड़ा यार, ये इतना बड़ा आदमी देवानंद का भाई है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये राइटर, तो ये इतना लाइट करना कंजूस आदमी है, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ सब। बड़ी तकलीफ हुई हमारे तो। नॉर्थ में, पंजाब में शाम हो गई तो चलो यार अंधेरे में क्यों बैठे हो, ऑल दैट काइंड ऑफ। करेक्ट। सो आई डिडंट नो अबाउट दैट। तो चलो एनीवे, तो उनका एक डेथ था, तो वहाँ पर बैठे,
वो शुरू हो गया. थोड़ी देर में चेतन साहब वॉक्ड इन. इट वाज व्हाट इन द इवनिंग, व्हाट 8 o'clock 7:30 ऑफिस से आए वो. एंड हाय यंग मैन मिलाया. तो ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी गोपाल, बट ही नेवर टिल द लास्ट ही नेवर इंट्रोड्यूस मी एज हिज डिस्कवरी. अच्छा. ही जस्ट वांटेड टू लेट समबडी सजेस्ट कि यार तुम इसको एक्टर क्यों नहीं बनाते हो. तो एवरीबडी थॉट कि आई एम रिलेटेड टू हिम. ही वॉज अ राजपूत, यू नो. तो थोड़ा भी राजपूत लोग वगैरह थी, तो वो सोचे कि शायद प्रोडक्शन में हेल्प के लिए फैमिली का ही है कोई लड़का. एंड दे वर नॉट वेरी कीन टू नो. गोपाल हाय यंग मैन, इतने होता था. अब क्या हुआ कि बातें होने लगी. देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिलीप कुमार इन लंदन. चेतन साहब भी बातें कर रहे हैं, फलानी टिंगड़ी बहुत, यू नो. तो फिर मैं रियलाइज़ कर रहा था यार ये फ्रॉड नहीं हो सकता. मेरे दिमाग वही घूम रहा है. इतने में एक ब्यूटीफुल लड़की 5'10" होगी शायद, पता नहीं 5'9" होगी. इट वाज प्रिया राजवंश. Of course. एंड शी वॉक्स इन. तो हमने दिल्ली में भी लड़कियां तो देखी थी ना, और उनका कल्चर जो अलग होता ना, ये बाल खुले हुए, सफ़ेद रंग की ड्रेस, पता नहीं, यू नो, ओपरियो जैसा होता है ना ड्रामा. तो हाय रॉनी ये वो करके बात एंट्री की. तो मुझे मिलाया, तो मुझे भी पहले तो उनकी आवाज़ में बोला क्या कहाँ से बोल रही, यू नो ऑल दैट. उसकी आवाज़ हंसकी थी थोड़ी सी. हेलो, बैठिए. अब क्या हुआ, बातें होते होते फिर खाना लगा. खाने पे डाइनिंग टेबल पे आम आ गए. तो चेतन साहब बोले रॉनी दिस इज़ किंग ऑफ मैंगो. इतने टेबल था, इसका चौरस समझ लीजिए. ये चेतन साहब बैठे हैं, ये मैं, ये रॉनी, ये प्रिया नाम था उसका, प्रिया राजवंश ना. वीरा बुलाते थे उसको, निक नेम उसका, अपना रील जो था. तो पिंक गर्ल और ऐसे ओजिंग, यू नो, लाइक दैट. तो हम देखिए दिल्ली में खूबसूरत लड़कियां हैं, ये हूर परी लग रही थी आपको. कुछ लगी ऐसी कि डिफरेंट चीज़ कुछ, यू नो ऑल दैट. और उसकी पिक्चर देख ली थी हमने. वो कौन सी हीर रांझा वांझा पता है, को पिक्चर देख ली थी मैंने. अभी बाई चांस, इफ यू बिलीव मी, टिल टुडे आई डोंट गेट इन दी ऑफ, यू नो. ओह, एक शौक होता है ना कि ऐसे भी होता है, यू नो ऑल दैट. जैसे स्टार्स को देख के होता था, या फुटबॉलर्स या गेम में क्रिकेटर्स एंड ऑल दैट. तो वो नहीं था. तो देखा, बस आई वाज एडमायरिंग फ्रॉम विद इन, यू नो. नो, जब वो हंसते थे मैं भी थोड़ा ही कर देता था, यू नो, बिकॉज नथिंग इन कॉमन. सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद आम आ गए. आम के बाद में बोले किंग ऑफ मैंगोस, तो अल्फांसो. तो हम तो दशहरी, लगड़ा, चौसा, वो सब दिल्ली में तो ऐसे ही होते थे ना. तो प्रिया ने क्या किया, वो आम में से 4 थे आम, एक उठाया और प्लेट में ऐसे उसने एक तरफ से पूरा स्कूप विद द स्किन, दूसरा पूरा स्कूप विद द स्किन, और गुठली वापस रख दी. फिर दूसरा 4 प्लेटों में काट के दे दिया. और साथ में था कांटा और छुरी, कांटा और चम्मच. मैं बड़ा परेशान, कसम से. मैं बोला यार बम्बई में आम चम्मच से खाते हैं, ये कैसे हो सकता है. अब मैं शायद, तो मैं ऐसे फिजिटिंग, यू नो, मैं चोरी आँख से देख रहा था ये कैसे खाएंगे, तो मैं भी वैसे खा लूँगा ना, उसमें क्या है. तो वही हुआ. चेतन साहब ने यूँ फोक से उसको किया, पूरा स्कूप जैसे आइसक्रीम होती है ना, और लिखा वाह वाह. तीनों जने वाह 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 शुरू हो गए. हमने भी फिर खा लिया. 1-2 चम्मच खाए तो दांत में चम्मच लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने क्या गुठली उठाई? नहीं, मैंने उस प्रिया को बोला कैन आई हैव द गुठलीस. ओह यू लाइक गुठलीस. मैं असली टेस्ट तो इसी में होता है जी. इतना फ्रैंक था मैं, यू नो. हाँ. तो अच्छा श्योर. उसने प्लेट आगे कर दी. अब तभी चेतन साहब ने मुझे लुक दी होगी या नहीं दी होगी, आई डोंट नो, बिकॉज लेटर ऑन आई केम टू नो कि चेतन साहब वेरी टिपिकल इंग्लिश टाइप, यू नो, छुरी कांटे वाले थे वो, यू नो. उससे पहले भी जो खा रहे थे चिकन विकन वगैरह, वो भी छुरी से काट वाट के खा रहे थे, पर मैं नोटिस नहीं किया, आई डिडंट बॉदर. तो अभी हम तो ऐसे आम पकड़ा, चूसा फेंक दिया, फिर दूध का गिलास भरा, ऐसे. अब तो वी यूज्ड टू एंजॉय मैंगोस. तो मैं खा रहा हूँ, तो प्रिया ऐसे नोट किया, चेतन साहब आम ऐसे खाए जाते हैं. अब थोड़ा सा झटका लगा कि ये समझ नहीं, गंवार आदमी है, पता नहीं इसको मालूम नहीं क्या है, छुरी ऑल दैट. मरने दो, टेस्टी था ऑल दैट.
आम हो गया, ख़त्म। बाद में पता लगा प्रिय से, जब दोस्ती होती है, कि हम भी खाना चाहते हैं, चेतन साहब उंगलियां चाटने नहीं देते हम लोगों को। कटिंग सरदार नहीं थी, स्टाइलिश थे ना वो। स्टाइलिश तो ये भी तो लंदन में शी वाज ब्रॉट अप, बट ही डिड लाइक सब पीपल डजंट उंगलियां चाट रहे हैं ऑल दैट। ऐसा है, इंडियन भी है स्टाइलिश। क्या अब क्या हुआ, सोने का टाइम आ गया, बस माई एंट्री वॉज इन द इवनिंग ओनली। तो वहीं मेरा एक दीवान था, उस पर मेरा बेड लगा दिया और मैं ऐसे लेटा जब ही, तो मेरे अच्छा एक नौकर आया, उसने पानी का गिलास रख दिया और साहब मैं सुबह मिलूँगा आपको। मैं कहा ठीक है जी, जाइए। एक छोटा सा कुत्ता घर का ही था, स्ट्रे डॉग था, बट घर में रहता था वो, तो आके मेरे बेड के नीचे, दीवार के नीचे घुस गया। आई वाज स्कैर्ड ऑफ दिस डॉग्स, डॉग बाइट, फिर 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ऐसा सुना हुआ था। तो आई वॉज ए न्यू पर्सन इन द हाउस, तो घुस गया, तो लेट गया था। मैं ऐसे सोच रहा हूँ यार, ये आदमी जो दिलीप साहब की बातें कर रहे हैं, देव साहब की बातें कर रहे हैं, चेतन साहब के घर में ऐसे ये वो रहना वहना, ही कैनॉट बी अ फ्रॉड। ये मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। मैं अपनी तरफ से टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे ये क्या बोलेगा एंड में। तो रात को जैसे मैं थोड़ा हिलूं, कुत्ता नीचे से ग्रॉल कर, मैं कहा यार पैर भी नहीं रख सकते। तो मैं पर सीधा, इतनी देर में मच्छर, जू में इतने मोटे मोटे मच्छर होते थे। दिस वाज ए विलेज, यू नो। ये सन एंड सैंड में पहले घास होती थी स्विमिंग पूल के पास, और एक सन एंड सैंड का डाइविंग पूल होता था। मैंने दिखाया इनको, फिर वो somebody died of not in this hotel, तो फिर वो रूल पास हो गया कि नो डाइविंग बोट्स इन द पूल्स, द होटल्स। So you, next day you came here to this hotel? तो सुनो ना, हाँ जी। अभी मैं रात को, अभी तो रात को उधर ही है मेरी रात, तो साहब अभी बच्चों ने काटना शुरू किया, यू नो, यहाँ से फील लाइक एंकल पे काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं हड्डियों पे ही। तो मेरी जान निकल रही है, क्या करूँ, की आवाज़ भी आ रही, थोड़ा हिलूं तो कुत्ता। तो इतने में क्या हुआ कि आवाज़ें आ रही शुरू हुई। ये बीच है ना, ऐसे जैसे सरन संग ऐसे बीच में ही घर था। तो आवाज़ें जैसे भूतों की पिक्चरों में होती ना, वो वेव, तो बड़े बड़े बोल्डर्स सी शोर पे होते हैं, मरीन ड्राइव पे देखा होगा ना आपने। तो मैंने तो समुद्र देखा नहीं था, मालूम नहीं था ये आवाज़ काहे की है। हवा इतनी हाई टाइड आता है ना, हवा बहुत तेज़ आती है। तो वो लकड़ी के दरवाज़ों से आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला साला एक तो अंधेरा, ऊपर से ये साला भूत भी है इस घर में। तो व्हेन आई वेंट टू द एयरफोर्स, माय मदर हैड गिवन मी वन स्मॉल पॉकेट बुक होती है हनुमान चालीसा की। वो पुत्र ये रात को पढ़ लिया करना, ठीक है। तो पढ़ा इतनी बार तो याद था। तो मैं जी ऐसे बैठ गए। अच्छा, बिकॉज ऑफ मच्छरों से बचने के लिए मैंने ऐसे उसको, चादर जो थी मेरी, उसको ऐसे टेंट बना के ना यूँ गोल घुमा लिया था। तो आई यूज्ड टू ब्रीथ लाइक दिस, ताकि मच्छर अंदर दिया है। माय फर्स्ट नाइट आई कांट फॉरगेट, it happened anyway, but I was very fortunate that sitting next to Chetanand and Priya and all that. फर्स्ट उनकी तो फोटो नहीं देख सकते थे। अब क्या हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, फिर लो टाइड आता है। काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, ऐसी चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। तो हवा बंद हो गई लो टाइड में, सीटियाँ बंद हो गई, वो जो वेव्स की स्प्लैशिंग आती थी वो भी बंद हो गई। तो मैं बोला यार हनुमान जी ने कमाल कर दिया यार, वाकई भूत भाग गए। और उसके बाद मेरी आंख लगी साहब बस थोड़ी सी, और फिर मैं थोड़ा जब उठा तो थोड़ी सी अर्ली मॉर्निंग का उनका जाली का लेस का कोई पर्दा था खिड़की के पास, जहाँ दीवार था, उसमें से कुछ रोशनी नज़र आई। अब मैं साहब उठा नहीं के कुत्ता था, तो वो ऐसे ही देखा, तो इतने में कुत्ता वो बाहर चला गया। और मैं थोड़ी देर के बाद उठ के बाहर आया तो छोटा गार्डन था उनका, और ये समुंदर। अबे हमने गंगा जमुना देखी थी, ये फ्लड्स में वहाँ एंड तक दिखाई नहीं देता था। वी यूज्ड टू सी इन दिल्ली, आवर फादर यूज्ड टू टेक अस ऑन द शोल्डर। यमुना नदी तब हाँ, यमुना नदी, गंगा नदी, वी हैड सीन सतलुज, आई हैड सीन बिफोर। अच्छा, बिकॉज वी यूज्ड टू गो फॉर अमृतसर। हाँ, अमृतसर में तो 3 थी, एक बड़ी कैनाल थी रावी की, अब क्या हुआ, देखा तो समुंदर, द अदर एंड नजर ही नहीं आ रहा। और
ये बीच जो था, देयर वाज नो बिल्डिंग. अभी तो आप जाएंगे ना बाउंड्री पे तो आपको सब बिल्डिंग नजर आती हैं. गोल्डन सैंड पूरी वर्सोवा बर्ड आइलैंड तक, पूरा ऐसे राउंड लाइक मरीन ड्राइव की तरह, एंड ऑल कोकोनट ट्रीज बेंट टुवर्ड्स द ओशन. कोकोनट की एक हैबिट है, आसपास कोई बिल्डिंग होती तो दूसरी तरफ जाता है. व्हेन इट ग्रोस इन माय हाउस आल्सो. अब नेबर संजय खान, तो उसकी बिल्डिंग के पास हमने लगाए थे, अब मुझे मालूम नहीं था. और बड़े हो गए तो उधर बिल्डिंग है तो मेरा पेड़ सब इधर आने शुरू हो गए. ऑल दैट दोस ट्रीज, तो दे वर लाइक दैट. फिर अभी टाइम चेंज एंड द नेक्स्ट डे, सॉरी, इन द इवनिंग दिस गाय केम एट अबाउट 4 o'clock. आई हैड अ गुड नाइट. He shifted me in the morning after breakfast. हाँ, to the hotel. हाँ, चेतन साहब आए, मैं बाहर ही खड़ा एडमायर कर रहा था. तो hey young man, good morning. गुड मॉर्निंग सर, ये है वो फलाना. Oh, did you sleep well? मैं बोला नहीं जी. Why, what happened? मैं बोला जी मच्छर. अरे that idiot, I'll throw him out. ये वो, he should have given you mosquito net. हाँ. हम ही mosquito net लेते हैं, ये है वो है. तो इतने में प्रिया आ गई. तो look at this boy, he did give mosquito net. Why you're spoiling that man? ये वो होता है ना टिपिकल कंप्लेन. तो मैं बोला जी कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये है वो है. इतने में रोनी भी आ गया. और नाश्ता इधर हुआ. उसके बाद में वो छोटा सा बैग था. चलो बैठे. हार्डली 2 furlongs फ्रॉम हिज हाउस दिस सन एंड सैंड. तो उन दिनों में एक ये होटल होता था और एक जू होटल होता था. बिल्कुल एंड में जू बीच के बाद से होता था, पता नहीं रमाडा या ऐसा. रमाडा तो अभी हुआ है, बस पाम ग्रोव. इस होटल में आपका एक किस्सा है ना, जो पहली बार जब आप सुनील दत्त से मिले. आ रहा हूँ, वही उधर ही आ रहा हूँ इमीडिएटली, बिकॉज अभी होटल आ गया ना. ही शिफ्टेड मी टू दिस होटल एंड ही टोल्ड मी ओके यू स्लीप, टेक रेस्ट एंड आई विल कम एट अबाउट 4 o'clock. देन बिकॉज देन विल मीट एंड ऑल दैट. ओके डन. मैं सो आई लव यू बार एंड ऑल दैट एंड सब. 4 बजे फ़ोन आया, क्या कर रहे हो भाई जी? सो रहा हूँ, नीचे आओ, तो मैं किसी से मिलवाना है. तो ठीक है, फटाफट पेंट. उन दिनों में इतना ऊपर पहनते थे, पेंटे बेल बॉटम्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो हम पहुँच गए नीचे पहुँचे. जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने ही स्विमिंग पूल. और स्विमिंग पूल पे वो डाइविंग बोर्ड नज़र आया. पहले ही सन एंड सैंड लिखा हुआ है. वो फटाफट वो फिल्म फेयर में या कौन सी मैगजीन में फ़ोटो छपी थी. I don't remember whether Sharmila Tagore or Saira Banu. Somebody was there in bikini. And there was a big news कि bikini पहनी इंडियन लड़की ने, हीरोइन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. अभी क्या हुआ, तो मैं आई वाज रिलेटिंग टू दैट. एंड ये पूल से ऐसे चल के आई शोड देम द प्लेस वेयर आई सेट डाउन फर्स्ट टाइम इन दिस होटल. एंड इधर सन बेदिंग मैट्रेसेस लगे हुए थे. देयर 2 air crews used to stay here. यूनिट इधर एयरपोर्ट से सीधे इधर रहते थे. उनका ब्रेक होता है ना. सो वन वाज स्विस एयर, द अदर वन वाज इटालियन एयरवेज. अच्छा, एलिटालिया. हाँ जी. तो वो सब बाय द साइड ऑफ द पूल सन टैनिंग हो रही है. लड़कियां बैठी हैं, स्टूवर्ड्स बैठ के उनको सन टैनिंग लोशन लगा रहे हैं पीठ पे. एंड बिकनीज में तो आई कुडंट बिलीव कि ओपन में यार ऐसे कैसे. और वो लड़का सबके सामने हाथ लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, ऑल दैट. तो मैं चोरी देख रहा था कि मैं बोला कि यार ये कहीं रोनी सोचेगा कि क्या ये बदमाश आदमी है, गलत आदमी है, लड़कियों को देख रहा है, डाल रहा है. तो मैं बस चोरी होता है. अभी यंग थे यार, ये ऐसा क्या होता है. इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी. मतलब यू डिडंट लुक एट देम विद दैट रंजीत लुक. वो तो बाद में लुक तो अभी भी आई. मैं पहली तो दोनों पिक्चरों में भाई बना था, मालूम है आपको. हे भगवान. रेशमा शेरा, वहीदा नवाज, रेखा सावन बादो. एनीवे, तो ऐसे वो लुक अभी तक आया नहीं था. नहीं, अभी भी नहीं. आई एम नॉट दैट, तो मूवीज में तो आई गेट पेड फॉर दैट ना. या ऑफ कोर्स. लेक्चरर्स, वल्गर. आई वाज अ विलन, क्रूड विलन, नॉट अ वल्गर विलन, ओके. या टिल टुडे. दैट्स व्हाई आई डोंट साइन दीस मूवीज एंड ऑल दैट. अब क्या हुआ, वहाँ बैठे हुए थे, जो साइड में एक चेयर थी, एक मलेशियन लेडी बैठी थी, एक और आदमी थे, इधर रोनी बैठ गया, चारों. तो थोड़ी देर में एक बड़ा टॉवल था, टॉवल आया, हाथ आया, तो भाई इधर देख रहा था. सडनली आवाज आई, सॉरी रोनी, आई वाज सो टायर्ड, आई थॉट जस्ट हैव अ डिप, ये वो फलाना. तो आ गया. तो वो तौलिया नीचे से जब हटाया सर से, तो अंदर सुनील दत्त. I looked at him, good looking, handsome man, and because of chlorine, his eyes were
real blood red, you know. And it reminded me of मुझे जीने दो. अच्छा. ला के और टीका लंबा ये वो डायलॉग भी याद आ गया. 25,000 आने के 25,000 जाने के, बंदूक के ऊपर नोट रखते हैं, चमेली जान, ये वो समथिंग था. वैदा जी थी उसमें. तो साहब उसके बाद बातें हुई. मीट गोपाल, तो ऐसे गोपाल का हाथ मिलाया. नथिंग इंटरेस्टेड ना. तो चलो घर चलते हैं. He had a sports car which was used in a film बी आर चोपड़ा की हमराज पिक्चर में. राजकुमार और सुनील दत्त की रेस लगती है ना जब, वो दे यूज दैट कार टू विन द हीरोइन. अच्छा. उसकी भी थी, उनकी भी थी. तो MG थी, तो उसमें बैठ गए. अभी उसमें तो 2 सीटर. ये ड्राइवर एंड दिस थिंग बैटिंग. तो हम बोट पे बैठ गए, मैं और रोनी पीछे बैठे. अभी पकड़ने को हैंडल नहीं है, कुछ नहीं है. अब 10 साहब वेरी नॉटी फेलो. प्रैंक्स जानबूझ के जैसे बैठे थे, तो हम गिर रहे हैं इधर उधर किया कि भारी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो जाके बंगले में पहुंचे और बड़ा गेट खुला. तो हमने दिल्ली के गेट देखे थे, नॉट दैट बिग गेट्स एंड ऑल दैट. तो पाली हिल पे जब गाड़ी ऐसे चढ़ी तो मैंने ये बोला, यार बम्बई इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. साला पहाड़ भी है यहाँ पर, तो शिमला की तरह, यू नो. तो गए, गाड़ी से उतरे एंड 10 साहब के 8-10 लोग आए हुए थे, गेस्ट. तो वो बैठे हुए थे ऐसे, थोड़ा पोटियो था उधर. तो बोले रोनी, वो सब उसको जानते थे रोनी को सब. कोई इंग्लैंड से आए हुए थे, कुछ बंगाल से आए हुए थे, 8-10 थे. दैट वॉज डिनर ऑर्गेनाइज बाई नरगिस भाभी जी. मटका गोश्त बोलते हैं कुछ. अच्छा. मटका गोश्त. शी हैड सम स्पेशल रेसिपी. अच्छा. तो आटा वाटा लगा के, ढक्कन लगा के, वो स्टीम के दम में पकाना, वो मालूम नहीं कौन सा दम. तो वो साहब थी. अब वो लोग आप में गप्पे मार रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकना मार रहे हैं. उसके बाद में नौकरा रात को 11-11:30 बजे, साहब खाना लगा दूँ. अच्छा, वहाँ पर भी डिम लाइट. मैं यार अंधेरे में क्यों रहते यार, ये ऑल दैट. और झाड़ के पीछे रखी हुई है, प्लांट के पीछे रखी हुई है ना, लाइक दैट. मूड लाइटिंग वही मैं बोला आपको. और बाद में पता लगा ये मूड लाइटिंग होती है. तो मतलब इतनी दूर से फेस नज़र नहीं आ रहा है, कैन यू इमेजिन. इतनी लाइट होती थी. बस ग्लास नज़र आते थे, बोतल नज़र आती थी, ऐसा था. बोले भाई यार बाद में गर्म करो, बाद में आते हैं. फिर दोबारा रात को 1 बजे 3 बार आया, 3 बार वापस भेज दिया उसको. अब एक लेडी की आवाज़ आई. सो दिस प्लेटफॉर्म वाज अप, यू नो, दिस टेरेस. तो थोड़ा नीचे थी, पर नीचे से आवाज़ आई, तचाप. तो सारे खड़े हो गए. इट वॉज नरगिस. अब थोड़ा फिर और खड़े होने के बाद पता लगा था मदर इंडिया. मदर इंडिया आपने देख ली थी. शी इज़ वेरी यंग, दैट ओल्ड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. अब क्या हुआ, चलो कितने शराब पियोगे. उन्होंने डांट डूट दिया सबको, उठाओ अपना ग्लास. रात के 2 बज गए. तो सारे उठ के अपना ग्लास लेके बंगले के अंदर. अब ये बंगले का डाइनिंग टेबल था, ये सामने किचन थी. और भाभी जी रात को 2:30 बजे स्मिता जी खड़ी है, वो औरत. और एवरी गेस्ट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर. वाओ. अब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा. मैं कि यार ऐसा भी होता है फिल्मों में, कितने नौकर हो गए, कितने हो गए, ऑल दैट. हम गरीब लोग हैं, फिर भी हमारा 1-2 तो घर में होते ही है. पर लेट नाइट नहीं होती थी ना हमारी तो. पर वाई शी हैड टू, यू नो. एनीवे, कटिंग क्रूडली बैठ के मटका हो गया बीच में. ये दत्त साहब अपनी किस्मत देखो, जिनकी फ़ोटो देखना मुश्किल होता है. ये मटका, ये मैं, ये रोनी, ये उनके बाकी दोस्त, ये नरगिस खड़ी हैं. तो मटके आटा वाटा निकाला, उसमें से धुआं निकला, स्टीम. तो सारे हाँ वाह व्हाट एन अरोमा, ये वो फलाना. मैं ठीक है, आई एम नॉट अ पंडित, बट अभी कभी अर्जी नहीं हुई मेरे खाने की, ऑल दैट, यू नो. मैं बच्चे खाते हैं, सब लोग खाते हैं, दोस्त खाते हैं, सब लोग खाते हैं. लीजिए एक सिप मार लीजिए आप. तो उसके बाद में एक इतनी लंबी कड़छी आई, कड़छी बोलते हैं ना उसको. और मटके के अंदर घुमाई गई, फिर उससे स्टीम और निकली, और सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं. तो ओनली गोश्त एंड सैलेड वाज देयर ऑन द टेबल, नथिंग एल्स. और आपने क्या? नो रोटी. अब मैं बताता ना आपको. अभी क्या हुआ, 10 साहब ने पहली प्लेट, नेक्स्ट टू हिम आई वाज देयर. मेरी प्लेट लेके जब कड़छी हुई, इतना बड़ा मटन का पीस,
मैं जी जी सर नहीं, मैं नहीं खा सकता। व्हाट डू यू मीन? क्यों नहीं खा सकते? दस साहब मैं वेजिटेरियन है भाई। मिसिस दत्त ने अपने हाथ से बनाया, लाओ इधर लाओ। मैं जी नहीं होगा बिल्कुल भी सर, मैं नहीं। अल्टी बोला, यार ये बकरा भी घास खाता है, वेजिटेरियन है बकरा। आई स्टिल रिमेंबर दैट डायलॉग। फिर उन्होंने भाभी जी ने बोला, दस साहब जिद मत करो ना। तो अंदर आवाज़ लगाई वहीं से ही, गंगाराम दोपहर का कुछ है खाना? तो बोले हाँ मेम साहब दाल है। अच्छा तड़का लगा के पराठा बनाओ। तो पराठे तो हमको पराठा दाल मिली, हमने खाई। 3 बढ़ गए, 3 साढ़े 3। अब वापसी पे क्यों भी कैसा लगा, क्या है वो है, मैं ये समझ नहीं आई मेरे को। पहले तो एक बात मेरा क्लियर करो यार, अंधेरे पे क्यों रहते हैं ये सब लोग? रोनी said all it says mood lighting or something like that. अंग्रेज टाइप था अच्छा, गुड लुकिंग मैन। चलो कोई बात नहीं, आ गए सडन से ड्रॉप किया एंड ही वाज स्टे विद चेतन साहब। चला गया। कल टुमारो राज हैज कॉल्ड मी सो वी लीव एट अबाउट 2 o'clock आफ्टर लंच वी लीव। तो मैंने पूछा नहीं कौन राज, कैसा राज। तो आया, आओ नीचे आओ चलो। तो पहुंच गए तो गाड़ी चली राज कपूर के स्टूडियो, RK स्टूडियो। Oh my goodness. See, my life started like this. And I had no background of any training, no institute, no See stage. the top notch, Sunil Dutt. Can you imagine? Raj Kapoor. This is unbelievable. So this was my luck. Just I'm so blessed. और ऐसे बैठा हो ना, ये नहीं कि हाँ जी दूर पीछे कहीं बैठा हूँ। तो वो साहब गाड़ी चलती गई। अब दिन में पहली बार मुंबई देख रहा हूँ, सड़ी हुई बिल्डिंगें, साइन वाइन पता नहीं क्या। फिर वो वहाँ से गाड़ी जब निकली तो ये शटल ट्रेन जो होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन निकल गई। तो थोड़ा आई वाज एक्सप्लोरिंग बॉम्बे लाइक दैट। तो वहाँ पहुँचे जब गेट पे, तो फिर अगेन बिग RK का स्टूडियो का वो क्या गेट, वो उनका था, वो जो था ना एक मोनोग्राफ था उनका, सिंबल जो था वो people say it was Nargis, कोई जानते नहीं है, it was maybe, हाँ it was, that is confirmed। वो पोज पॉइलेट और ये ऐसा था, बिल्कुल सेंटर में बना हुआ था। और जब खुला तो उनकी पिक्चरें मैंने देखनी, उनकी मैं तो हर रोज़ चोरी जाके कोई, उन दिनों में रिड्यूस रेट वाली पिक्चरें होती थी। सुबह हम दोनों देखने की, दोपहर में गाइड देखने की, रात को कुछ और देखने की, और शाम को घर जाना फुटबॉल खेल के। रात को माँ बड़े प्यार से सारा दिन आया, दूध में मलाई डाल के, घी भी डाल के। जो ये नहीं पता कि पिक्चरें देख रहा था बेटा। हाँ, ये नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं मालूम। मेरे यार दोस्त भी बात थी ना बिल्कुल। और इतने में क्या हुआ, फ़ोन वोन भी नहीं था कि हाँ जी घर में कोई इंक्वायरी करे एंड ऑल दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब क्या हुआ कि गए हम, तो उनको मालूम था, तो सामने लॉर्ड शिवा का एक स्टैचू था उनके दीवार, इधर ऑफिस के पास ही। तो आई रिलेटेड विद एवरी पिक्चर स्टार्टेड विद लॉर्ड शिवाज, पृथ्वीराज जी पूजा करते, ऐसा था मैंने दिमाग में। तो मैं बोला ये तो वही है उसी, यू नो ऑल दैट। तो वॉचमैन को मालूम था, तो उसने बोला इधर लेफ्ट पे जाके राइट पे साहब की कॉटेज है, उन्होंने वहीं बुलाया आपको। चले गए। अब पहली बार मेरे फ्रैंकली स्पीकिंग चेतन साहब को मिला, दत्त साहब को मिला, मेरे को वो नहीं था। अब जैसे किसी कॉलेज में या किसी मंदिर में जाओ या किसी ऐसी जगह पे जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, तो ये होता है दिल में एक थोड़ा सा टक टक डिसिप्लिन टाइप, यू नो, अंदर से कुछ होता है, यू नो, यू स्टार्ट नॉट कि हाँ जी हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऑल दैट। तो मंदिर में तो वैसे सीधे हो देते हैं। तो जैसे खोला तो देखा तो थोड़ा सा फीलिंग ऑफ द स्टूडियो, दैट स्मेल जिसको बोलते हैं। एंड अब मेरा वो नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ या क्या होने वाला हूँ, कभी नहीं ऐसा आ रहा था दिमाग में। गए, उसने दरवाज़ा खोला तो उनकी एक कॉटेज थी राज साहब की, इतना बड़ा। तो कमरे में हम बैठे, और चाय लेने के लिए चला गया, तो दीवार पे लाइफ साइज फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल हिज हीरोइंस राज साहब की, वो पूरी 5-5 फुट लंबी। तो हम तो इतनी फ़ोटो देखी थी लाइफ में ना, मैक्सिमम, कि फोटोग्राफर की दुकान पे भी ये ब्लो अप्स थी। हाँ, पूरी। और ये ब्लो अप। और बाकी जब पिक्चरें देखने जाता था तो इतने शीटर थे जो फोटोग्राफ बनते पब्लिसिटी के लिए। तो इतनी लंबी पूरी विजंती माला खड़ी है, और पद्मिनी खड़ी है वाटरफॉल के नीचे, इस तरह सब हीरोइन, नरगिस की भी कोई हीरो नहीं, सिर्फ हीरोइन, हीरोइंस ओनली। राज साहब काफी शौकीन थे ना। हाँ,
शौकीन तो पिक्चर बनाने के थे वो, तो बाकी तो सारे होते हैं नहीं, उनकी दे यूज्ड टू बी पैशनेट, उनकी एक्ट्रेसेस के बारे में तो वो देव साहब की भी तो है ना जी, दिलीप साहब की भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं सबको मिल चुका हूँ। अब क्या हुआ, तो पीते देख रहा था इतने राज्य की एंट्री हो गई। सॉरी रोनी जी, वो क्या है जी, मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रहे सी जी, ये है जी। मैं बोला यार ये पिक्चरों में भी ऐसे ही बोलता है और चिकी कह रहे हो चिप लड़ाते हैं इधर भी। एंड बिलीव मी, ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम हिज चीक, इतना हैंडसम आदमी था राज साहब, बिल्ली आंखें, गोरा, एंड ये पिग गर्ल, यू नो ऑल दैट। तो हाथ गोपाल से मिला दिए, तो गोपाल बैठ गए और गप्पे चल रही है, फलाना चल रही है। फिर वो मेरा नाम जोकर पिक्चर थी ना, उसकी हीरोइन वो एल्बम वगैरह दिखा रहे हैं। रोनी जी इत्थे बिठा के इनू मैं सीन समझाता हूँ सी, मतलब गोद में बिठा के कैसी हो वैचल जॉली फेलो। उसके बाद चलो जॉली फेलो, वही मैं आपका शौकीन, गोद में बिठा के एक्ट्रेस, अभी हीरोइन को बैठ तू पुत्र बैठ ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। ओके, तो ये नहीं कि फ्लर्टिंग इन फ्रंट ऑफ इस गोद में बिठाना फ्लर्टिंग नहीं तो फिर और क्या है रंजीत साहब? अभी अपना किस्सा अपने दोस्त को बता रहे हैं, सुनिए। अच्छा, डोंट कॉल मी साहब, गोली इज ओके, रंजीत इज ओके, साहब आप नहीं है, साहब आदत बिगाड़ेंगे मेरी आप। घर में भी कोई साहब नहीं बोला था। एनीवे, तो साहब तो हाँ, वो चाय वाय हुई, फलाना, चलो गाना देखते हैं। अब मैं सोचा कि ये हम लोग किसी थिएटर में जाके गाना वाना देखेंगे, कुछ दिखाएंगे। तो वह पैदल ही गए, वो जहाँ लॉर्ड शिवा का लगा हुआ था स्टैचू, उसके पीछे सीढ़ियाँ थी, उसके ऊपर ही थिएटर था उनका अपना। तो अंदर गए, मैं सोचा टिकट विकट ले कुछ होगा ऐसा ड्रामा, कुछ नहीं जी। एक बड़ा सोफ़ा था, एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी इधर, एस्ट्रे टेबल। हाँ जी शुरू करो जी। और जोकर का जो गाना जिसमें बहुत सारे एक्टर होते हैं ना, स्विंग करते हैं, ये करते हैं सब लोग, ऐसा वो वाला, रशियंस भी थी उसमें। हाँ, वही सर्कस का था ना पिक्चर, वो लगा गाना। तो बीच में चलते चलते राज साहब ने बोल दिया, रोको, कट इट, रील बार लेके आओ जी। वो पीछे उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर था, तो वहाँ से वो बंद हुआ, तो अल्टीमेटली वो रील लेके आए। तो कोने में टेक्निक वाज जो थी उन दिनों में, एक इतनी सी मशीन थी, इतनी ऊंची स्टूल टाइप, ये कुर्सी, उसको मूवी वाला बोलते थे ना। और उसके नीचे एक 0 वाट का बल्ब लगा होता था शीशे के ऊपर, और वो फिर रील चलाते थे उसके ऊपर, तो वो दिखाई देता, एक एक फ्रेम दिखाई देता था, ये हाथ से ना। ये एक जगह रोका और उन्होंने फिल्म बाहर निकाली, उधर को एक कटर, नहीं कटर नहीं, ये लिप्स, ये लगाता है नेल पॉलिश लड़कियाँ, वैसी को बॉटल थी। तो इन्होंने कैंची उठाई, उसको काटा, फिर इतना फिल्म को लेके उसको काटा, फिर उसके ऊपर रख के ऐसे नेल पॉलिश लगा के, जाओ जी अब लगाओ। किसी को काट दिया? हाँ, कुछ काट दिया उन्होंने। वो फिर बाद में लगी, फिर बड़े वाह मज़ा आया। बोले दिस वॉज ड्रैगिंग, दैट वॉज एडिटिंग, यू नो, इन हिज लैंग्वेज। बोले आई वॉज फीलिंग इट इज़ ड्रैगिंग, यहाँ से मतलब नहीं था लंबा चलने का। उसके बाद बोले जी कट शॉट, घर चलते जी। तो आरके के पीछे, स्टूडियो के पीछे ही उनका थोड़ा आगे जाके घर था, वहाँ पहुँचे हम, चेंबूर। हाँ। और वहाँ पर अंदर जब गए उनके, तो डब्बू था, रणधीर कपूर, उनका बेटा। हाँ। और पुत्र एरोनी जी, हैं चल ड्रिंक बना। मेरा भाई रणधीर कपूर है जी, बड़ा प्यार से पंजाबी में। तो हमने भी आजवत बिलाया, गोपाल, पता है नाम तो भूल गए उनको। छोटे बेटे से वो नहीं, ड्रिंक बनवा रहा था। ड्रिंक नहीं, डब्बू वाज द एल्डेस्ट। हाँ, but he must have been what, 14, 15? No. He was my age ना। अच्छा, डब्बू आपके एज। या हाँ, करेक्ट। चिंटू छोटा था। हाँ, ओके। और तीसरा राजीव था, ऑल दैट। तो ये रणधीर कपूर। हाँ। तो डब्बू ने ड्रिंक बनाया, ही न्यू हिज फादर्स नेचर। तो हम बातें जब कर रहे थे, तो कब खिसका मालूम नहीं। ड्रिंक क्या हुआ? विस्की है? विस्की विद सोडा, वाटर पता नहीं, विस्की विद वाटर। हाँ, कुछ आपका ड्रिंक और उनका ड्रिंक वही सेम ही ना। मैं कैसे बोलूँ, मैं नहीं लेता कोई, मैं तो चुप था बस। मैं तो देख रहा, स्टडी कर रहा था। चीयर्स वीयर्स हो गया। उसके बाद वो जी, आप अल्कोहल भी नहीं पीते थे, मीट भी नहीं खाते थे? कभी नहीं।
You know, nobody. I never used to smoke. Abhi till today I don't smoke also. So you don't smoke, you don't drink, you don't. I don't know the taste of non-veg. Non-veg, and you're the. I'm not a pandit. And you on I screen. cook. I can cook. On screen, every movie you have a drink in your hand, and probably one haddi also. हड्डी हड्डा होता था पूरा, बकरे की टांग होती थी, all that kind of stuff. हाँ. वो भी मेरे बाद में लफड़ा हुआ, मैं बताता हूँ. Why did these people then cast you like that? ऐसे रोल में क्यों? You know what happened? I started as a brother in Vaidarabhan, Reshma Shera. In Sawan Bhadon, I played that. Third picture was Sharmili. हाँ. Where I played Rakhi. राखी के साथ. She had a double role. Shashi Correct. और उसका भी तो एक किस्सा है ना? हाँ, वो मेरे को घर से निकाल दिया था लोगों ने. हाँ. तो क्या हुआ, पहले तो घर से तो ऑलरेडी उनको पता लग गया था. When I was not going back ना. कि ये नहीं, फिल्म लाइन में ये है. तो फिल्म लाइन was treated as a bad line, you know. टैबू था, you know. मरासी, भांड, ऐसा समझते थे. तो ये कोई करियर है और ना, समथिंग लाइक दैट. एयरफोर्स में गया तो बड़े खुश थे वो. पर रेशमा और शेरा में तो आपका रोल अच्छा था. नहीं, वो जो भी था, पर उन्होंने नहीं देखी ना. हाँ. कोई अच्छा, उन दिनों में कोई मीडिया भी नहीं था जिसपे पब्लिसिटी वगैरह कुछ हो या घर में पता लगे. भाई इतना मालूम था, फिल्मों में चला गया. कंजर बोलते हैं पंजाबी में प्यार से. कंजरा वाला कब करता है, बरासी बन गया बेटा, नाम बदनाम कर दिया फैमिली का. अब क्या हुआ, शर्मिली में मेरी ऑटोग्राफ लेने शुरू होगी पब्लिक. यू आर नॉट विद द सक्सेस ऑफ योर फिल्म, यू नो. रेशमा शेरा पहले इतनी नहीं चली थी. ये चली थी, सावन बाद वो चली थी, तो थोड़ा प्रेस वाले भी दयालु हो गए थे, यू नो. अरे इधर आया, ओए इधर खड़ा हो जा. तो मेरे तो भोरे शॉट पे भी बड़ा मेरा टांग वांग खींची गई थी, यू नो. अब क्या हुआ, ये घर वालों को दिल्ली में प्रीमियर, वो प्लाजा सिनेमा है उधर एक, कनॉट प्लेस में. तो मैं जी घर गया. पहले तो सब गुस्से में, ऑल दैट, क्यों आया ये यहाँ पर. मैं जी देखो, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत लाइन में हूँ, फलाना हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, ये है वो है. ये शामी पास में छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग आइए और देखिए क्या कर रहा हूँ मैं. आई वॉन्टेड टू शो देम द पीपल आर मेरी फोटो खींच रहे हैं, दे विल बी प्राउड ऑफ मी, मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, भीड़ ले रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. मेरा वही मोटिव था. अब वो साहब फूफा फूफी, चाचा चाची, ये वो, पापा जी, चाची एंड ऑल दैट, 7-8 पास दे दिए उनको. अब बैठ गया. तो मैं जाके थिएटर में भी उनके साथ ही बैठा. और शर्मिली में और राखी का मोलेस्टेशन सीन था एक मेरा. उनसे बालों से पकड़ता हूँ उसको और जैसे घुमाता हूँ, और उसके बाद इंटरवल हो जाता है, कुछ ऐसा था. आई डोंट रिमेंबर. सो द प्रीमियर यूज्ड टू बी ग्रैंड दोज डेज. वेदर आई एम वर्किंग इन योर फिल्म और नॉट, तो प्रीमियर पे हम लोग जाते थे ड्रेसअप होके. बाद में जब स्टार बन गए, एक्टर बन गए, तो कौन सी गर्लफ्रेंड या कौन सी हीरोइन को साथ में लेके जाने का, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. ऐसे एंट्री होती थी. और उस प्रोड्यूसर के लिए बुके लेके जाते थे हम लोग, गुड विशेस. तो वहाँ फिर वो इंटरवल पे सारे यूनिट को, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, ये वो सबको, स्टार कास्ट, वो डाइस पे बुलाते थे. तो मैं गया, इंट्रोडक्शन वगैरह दी गई, और नाम तब मेरा सुनील दत्त साहब ने चेंज कर दिया. बोले यार गोपाल, जो जब वाइल ड्यूरिंग शूटिंग ही चेंज माय नेम फ्रॉम गोपाल टू रंजीत. ही आस्क्ड मी, यार तू फिल्मी नाम रख ले यार कोई. मैं देखो बलराज हूँ, मैंने सुनील दत्त, दिलीप कुमार, यूसुफ खान है, और दिलीप कुमार, फिर वो काका का नाम ही बताया था, जतिन, समथिंग लाइक दैट. जीतू का रवि था कोई नाम. तो मैं दत्त साहब आप ही रख दो ना. वी वर गोइंग टू जैसलमेर. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. तो गाड़ी चला रहे थे. गोपाल में क्या? वो बोले दूध वाला भैया लगता है कुछ. मैंने पूछा नहीं, माफ़ करना, गोपाल इज नॉट अ फिल्मी. उन दिनों में 2 गोपाल भी थे, वी गोपाल और एक गोपाल सहगल. दे वर नॉन कॉमेडियंस, यू नो. तो फिर अच्छा, ही वांटेड स्टाइलिश नेम, कुछ पता नहीं. तो रंजीत. तो बोले कौन से लेटर से. मैंने बोला दत्त साहब आर से रख दीजिए, ऐसे ही. तो बोले थोड़ी देर के बाद, रंजीत कैसे है. अब हमने राणा रंजीत सिंह मानो था, इज अ ग्रेट किंग सारा, पर उनके चेचक के दाग थे, कुछ ये थे, फलाना थे, एंड एक आंख से गड़बड़ी थी वॉर में. तो अब मैं अभी दत्त साहब, आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, भाई उसने नाम बोला है, सजेस्ट किया है, तो भाई जी ठीक है जी. मैं दत्त साहब वो काम होगा तो नाम चलेगा, नहीं तो क्या है बोलता है. ओ नहीं बचे तो देखना. हो गया. जैसलमेर पहुँच गए. वहाँ से फ़ोन पे बता दिया गया बॉम्बे
इन फ्यूचर ऑल द पब्लिसिटी डोंट यूज गोपाल, से रंजीत। अच्छा, चलो जी। तो अभी रंजीत साहब शर्मिली के प्रीमियर पे, राखी वापस आ रही थी शूटिंग करके। हाँ। उसने बोला यार वो डायरेक्टर मेरे कॉलेज का बॉयफ्रेंड है कोई, उसका रोल है, तुम मिल क्यों नहीं लेते हो? मैं मिल लेता हूँ, नंबर दो। तो चला गया, उन्होंने ऑन द स्पॉट दे अप्रूव्ड। तो शर्मिली में ये प्रीमियर तारीफ हुई एंड कुछ हेडलाइन भी मिल गई कि न्यू विलन इज बॉर्न। पर उसमें योर पेरेंट्स गॉट एंग्री ना, जब आपने राखी। आ रहा हूँ ना। हाँ। ये तो प्रीमियर में जब गए, हाँ। तो इंटरवल के बाद में मैं आई केम टू माई सीट, पिक्चर शुरू हो गई, तो सीटें सारी सब सीटें खाली थी। ओह। तो मैंने जो बैठा हुआ था, जो मैं ये लोग किधर है, बोले ये तो बहुत देर से चले गए, आए नहीं है। मतलब ड्यूरिंग इंटरवल वगैरह वो चले गए थे। अच्छा। उठो जी, एकड़ा कंजरा का काम शुरू किया है, तो पुत्र ने फलाना फलाना ये नाम बदनाम कर दिया, बाप की नाक कटवा दी। क्यों? क्योंकि थप्पड़ मारा था आपको? किसने? पिक्चर में? नो, उससे पहले ही राखी के कपड़े फाड़ रहा ना। हाँ। अच्छा। They saw that ना, मोलेस्टेशन सीन। हाँ। अब क्या हुआ कि रात को 1-1:30 बजे पार्टी खत्म हुई। तो मैं अभी भी जब जाता हूँ दिल्ली, तो आई स्टे, नाउ पेरेंट्स आर नॉट देयर, तो आई स्टे इन माई सिस्टर्स हाउस। होटल की कमरे चाबी होती है, बट आई गो एंड स्पेंड द नाइट देयर विद देम। अब सीधा जी क्या हुआ, मैं पार्टी के बाद घर गया। घर गया तो रात को 1-1:30 बजे 2 बजे पहुंचा हुआ मैं। वी लिव्ड इन मॉडल टाउन, यूनिवर्सिटी के आगे, तो वहाँ पर राखी वॉज इन्वॉल्व विद गुलजार। अच्छा। तो गुलजार यूज्ड टू स्टे इन शक्ति नगर। शक्ति नगर मॉडल टाउन इज हार्डली करेक्ट 1 माइल मे बी, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि इनको रास्ते में ड्रॉप कर देना, और कल सुबह गाड़ी वही रखना तुम, और कल सुबह इनको पिकअप करके आ जाना। ठीक है। तो आई ड्रॉप्ड हर, देन आई वेंट टू मॉडल टाउन, एंड देन द मोमेंट आई एंटर्ड, तो ऐसे लगा कि पता नहीं कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पर सारे के सारे बैठे थे। देखे भी डर्टी लोग, अभी कोई उठ के गोली मार देगा ना, समथिंग लाइक दैट। मैं बड़ा परेशान, कुछ गड़बड़ होती नहीं, कोई मरते नहीं गए, ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट। फिर माँ ने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हो जाने की, ये है वो है। अच्छा जी, मैंने क्या किया है? अभी कुछ छोड़ा तूने? हैं? लड़कियों को बालों से खींचता है और कपड़े फाड़ता है, ये काम होता है क्या? ये कोई डॉक्टर का रोल कर, कोई आर्मी का रोल कर, कोई फलाना कर, ये की है, की बकवास है। बाप का नाक कटवा दिया, वो कौन सा मुँह लेके अमृत हर जाएगा? तो मैंने जी वो तो काम है जी, वो तो करेक्टर होता है, जा दफ़ा हो जाओ, मतलब ऐसा था। मैं बैठा गाड़ी पे, फिर दोबारा आके शक्ति नगर, मैं जो मेरी बचाओ यार, मेरे को वो सब सोचते हैं कि जैसे मैं रियली तेरे को मैंने ऐसे। तो राखी मैम के पास पहुंच गया? हाँ, घर पे। तो साहब शी वाज वेरी स्वीट, शी अकम्पनीड मी। मॉडल टाउन नज़दीक ही था। तो उसको देख के मेरी माँ रोना शुरू हो गई। मेरे पुत्र ने क्या किया? नहीं, कितनी सोनी कुड़ी है, देखो ये वो बोली, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने पुत्र की माफ़ी मांगती हूँ तेरे से। ये वो बड़ी परेशान हो रही है। अच्छा, उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी। नहीं मामा खूब भालो, ये वो फलाना फलाना, ये वो फलाना, वो पंजाबी में, ये बंगाली में बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बंगाली हिंदी बोलती थी, याद करके बोलती थी हिंदी। तो लैंग्वेज, तो अल्टीमेटली आई वॉज पार्डन, कैन कटिंग क्रूडली नाउ, ये ऐसे क्लैरिफिकेशन हो गई थी, वो काम दूसरा है। अभी हमारे मॉडल टाउन में एक थिएटर होता था, है भी पता नहीं, अल्पना। हर पिक्चर लगी, तो तब मेरे को बहुत काम मिला शर्मिली के बाद। आई साइड लेफ्ट राइट, ये वो, कभी स्टोरी सुनना नहीं ना, मैं क्या करना है, जो मेरे पास आया है, ही नीड्स मी, ही विल जस्टिफाई, वाई शुड आई लिसन टू द स्टोरी। हाँ, को गेटअप वेटअप डाकू बदनाम मुझ कैसी लगानी, ये करा उतना। तो आई बिकेम वेरी बिजी। तो माय मदर वुड टेक हर फ्रेंड्स आफ्टर लंच अल्पना में, और मैनेजर फ्री में पास भेज देता था कि भैन जी वो रंजीत की पिक्चर लगी है जी, आ जाओ, नवी पिक्चर लगी है। तो लाइक दैट काइंड ऑफ था। तब फोन वोन लग गया था तभी। तो साहब पहली बार शी सॉ मी डाइंग ऑन द स्क्रीन। अब किस माँ को कैसे पता लगेगा? कोई पिक्चर थी जिसमें गोली वोली लगती है, मरते, और हम मरते भी तो ना लाल आंखें करके और सांस रोक के, और वो लंबा शॉट होता है। हाँ, जल्दी आने, अट्ठा ठोक गिर खत्म, ना पूरा लंबा। तो विलन है तो विलन को दिखाना तो पड़ेगा ना। अब ची दाड़ मार मार के रोना शुरू थिएटर में।
I am telling you all this because this gives you an idea what kind of a family I belong to. Innocent. Yeah. Orthodox, you know, कभी मालूम नहीं कुछ नहीं. तो साहब वो सब सहेलियाँ पैजी क्या है मेरा पुत्र मर गया, you know. फिर बाद में पता लग गया क्लाइमैक्स आने वाला है, अब ये मरेगा या पुलिस ले जाएगी, तो उठ जाती थी वो, चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे. She didn't want to see. Which mother will like, चाहे नकली हो. Even though she knew, फिर भी that she saw first time, and then she didn't want me to be caught and or dying, you know, all that kind of stuff. तो बोले फिर देखेंगे, चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे. वो ऐसे होता था ना उन दिनों, जैसे मतलब one knew कि वो जैसी रंजीत will come on the scene, वो एक आवाज आती है डिशुम डिशुम की. As a child, I always associated डिशुम डिशुम with रंजीत. तभी आप मुझे बोलेंगे मुझे डर लगता था डिशुम क्या चीज़. मतलब in my childhood it was that कि आपके जो कैरेक्टर्स थे उसमें कोई ग्रे शेड नहीं था, पूरा का पूरा इवल. मतलब एक भी रत्ती भर उसमें शेड ऑफ शक्ल से ही लगता था. अभी ये आया इसकी शक्ल में लिखा हुआ है क्या कहना चाहता है ना. right? आपके आउटफिट हो जाए, वो सफेद सूट हो जाए. हमारे वो होते नहीं थे ना डिजाइनर, खुद ही अपना डिजाइन कर लेते थे. अच्छा, आप वो सफेद वाले सूट अपने आप करते थे? हाँ, दर्जी को बोलते थे, टेलर को. ये सिर्फ लड़कियों के होते थे. ये 2-3 थी जो साड़ियाँ बढ़िया डिजाइन करती थी और ऑल थी. जैसे अजीत वाइट सूट, वाइट शूज और ऑल दैट. और वो तो स्टार थे ना, वो तो अपना बनाया हुआ था. पर विलन को देखिए, विलन एज इट इज ही इज अ बैड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन. दे वांट टू हैव अ क्लीन इमेज. अब जितने भी स्मगलर होते थे और सारे साफ सुथरे, ऑल दैट, कड़ी शड़ी पहन के ऑल दैट. हाँ, वो कफलिंग्स होती थी आपकी, हाथ में सिगरेट का डब्बा. अब फिर वो 70 के दशक में आपके वो बेल बॉटम हो गए शुरू. फिर देन अच्छा, तो एक्टिंग जो आती थी तो अपना कुछ था नहीं. एंड आई हैड अ गुड फिजिक. तो उन दिनों में टाइट शर्टों बटा, तो मैंने लेसिस पहनने शुरू कर दी, जो लेस. तो बटन थोड़ा खुले ही रहते थे. अब बटन खुले हैं तो कुछ लॉकेट डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. वेरी लोफर लुक. लोफर समझ लीजिए. एनीवे, बट दैट बिकेम फैशन. दैट्स ट्रू. तो आपने कहा ना कि इतने सारे फिल्में आपने कहा, देयर वाज अ टाइम आप 70-80 फिल्में करते थे. ऑन द फ्लो. मतलब एक दिन में मैंने 8 फिल्मों की शूटिंग की है. ये बोलते ना जो, आई डोंट बिलीव इट, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, हम रोल में डूब जाते हैं, मर जाते हैं. मेरी लाइफ उल्टा शुरू हुई ना. पहले फिल्में की, फिर मैंने वो की, टीवी भी किया, वो भी कॉमेडी से शुरू किया, बात बन जाए. देन आई डिड 2 स्टेज प्लेज व्हिच वी वेंट अब्रॉड, टूर्ड अब्रॉड आल्सो. थिएटर भी किया. तो थिएटर में जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे, हम क्यों दे देंगे, और खुद ही डायलॉग भूल गए. तो राज कपूर से जब आप मिले, उनकी कौन सी पिक्चर की आपने? राज साहब के साथ मैंने अब्दुल्ला में काम किया था, और एक और पिक्चर थी. पर पार्टियां तो रोज ही होती थी ना. हाँ, आपकी पार्टियां भी काफी मशहूर. आई वाज वर्किंग मोर विद दिस यंगर चिट्टू हुआ, ऋषि कपूर हुआ, रणधीर कपूर हुआ, शशि कपूर हुआ. नॉट विद राज साहब एंड ऑल दैट ऑल द टाइम. आई बिकेम, ही यूज्ड टू कॉल मी अ टैक्सी. मुझे और शशि कपूर को, यहाँ जी 1 घंटे के लिए टैक्सी हायर करके आए हैं, आज अब ये टैक्सी कहीं और जाएगी. अच्छा, तो आपका वो रेपुटेशन बन चुका था कि आप कई सारी फिल्में एक साथ कर रहे हैं. बिकॉज आई हैड नो चॉइस. बाय ऑल द हीरोज वर, यू नो, ऑल द हीरोज, कि शाम हुई, सनसेट हुआ नहीं तो दारू किधर है. हाँ. तो मेरा घर था, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे, घर था, स्टाफ था. कहाँ? जू में? ये जहाँ मैं रहता हूँ. हाँ. जू में, शुरू से जू में. तो जमावड़ा आपके घर में होता था? तो वही होता था शाम को. यू डोंट हैव टू, देयर वाज नो इनहिबिशंस ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दैट. कौन आते थे आपके घर? सारे नेम, नॉट एक्टर ओनली, हीरोज, हीरोइंस आल्सो. इन माय हाउस आई, यू नो, यू वोंट बिलीव, वैसा तो कोई भी नहीं हो सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग. एटमॉस्फेयर, और इनर बैठे पराठे बना रही है, परवीन भाभी दारू बना रही है, यू नो, और वो मौसमी मच्छी बना रही है, नो, लाइक दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड टू बी देयर. और नीतू भिंडी बना रही है. कौन? नीतू सिंह. क्या बना रही थी? भिंडिया. अच्छा. मैं थोड़ा गार्डन में वेजिटेबल भी वही थे ना. हाँ. और हु वर द मेन ऑल? विनोद खन्ना, जितेंद्र. नहीं, उन दिनों में थे ये अपना दत्त साहब, तो राजकुमार, दत्त साहब, फिरोज खान, संजय खान,
They were my अच्छा, neighbors पूरा also. खान family. Yeah, and then Dharanji, and then all Shatru, and then इंस्टीट्यूट के बड़े थे ना, वो भी सब, फिर कुछ थोड़े से ग्लैमरस प्रोड्यूसर भी होते थे, वो भी हर रोज शाम को चलो यार वही चलते हैं, कोई क्लब वोलों में कोई जाते नहीं, दैट वाज नॉट अ सीन। तो फिल्म शूट करके लोग पैकअप हुआ तो उधर आ जाओ, खाना तो कहीं खाना ना, तो होटलों में तो जाते नहीं थे ना। और मेरा घर जो चलता था सैन एंड साइड की किचन से चलता था, इधर एक सैम्पन रेस्टोरेंट होता था चाइनीज, उसका खाना बहुत बढ़िया होता था। तो खाना यहाँ से जाता था, खाना फोन कर दिया तो पैक होकर फर्स्ट क्लास चले जाता था। बाकी जो ताज़ा बनाना बारबेक्यू वगैरह वो तो उधर बना लेते थे, वो खुद ही बना लेते थे। अच्छा। अभी संजीव कुमार, और रात को एक एक दो दो बोतलें पीने वाले राजेश खन्ना, तो। और आप सबको पिलाते थे पर पीते नहीं थे? मैं तो काम ही करता था, जब आता था ये पार्टियां चल रही होती थी। अच्छा, आपके आने से पहले ही लोग आके बैठ जाते थे? they didn't have to phone. अच्छा। या So I was blessed कि हम तो सोचते थे यार जिस घर में मेहमान आते हैं भगवान होता है, दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। तो जगह थी मेरे पास इनफ, लकीली आई गॉट अ गुड बंगलो, तो मैंने रखा भी ऐसे था भाई, नॉट कली, नॉट शैंडलियर, नॉट इटालियन मार्बल, लिवेबल, कहीं भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। एंड स्टाफ था, और स्टाफ भी मेरा उधर ही रहता था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम इन एनी डिपार्टमेंट। तो फिर आपका एक फार्म हाउस भी था जहाँ पर पार्टियां होती थी, मतलब काफी सारे ये जो मैगजीन्स थे ना उस टाइम के, वो लिखते थे। सॉरी, वहाँ पार्टियां नहीं होती थी, पार्टियां तो इधर जो भी होती थी पार्टियां, मतलब पार्टी जाए इकट्ठे हुए पार्टी, आई वोंट कॉल देम, दैट वाज द रूटीन। हफ्ते में 7 दिन तो मतलब कोई होते थे, 5-6 लोग तो होते ही थे ना, और सब मतलब इतना पीने वाले कि रुकावट नहीं होती थी। फिर कोई इवेंट कोई हो, आज पार्टी है, पार्टी का मतलब ये है कि जैसे, तो रोज फिर अगर रोज पीते थे तो अगले दिन शूट पे कैसे जाते थे? वही तो मेरे को 8 शूटिंग क्यों करता था मैं, ये तो 2 बजे से पहले उठते नहीं थे, 1 बजे से उठते नहीं थे। 10 बजे की शूट पे ऑल दिस हीरोज वुड कम, अपना आराम से लंच के आसपास, फिर लंच खाया, उसके बाद शूटिंग शुरू होती थी, तब तक मेरी डेट खत्म हो जाती थी। So I had to compromise. I used to drive down every day 6.5 hours to Jazeera Fort, shoot there. Every day catch a morning flight, Srinagar, shoot there. In the evening 4 o'clock back to Bombay, shoot in Mehboob Studio. कितने दिन तो मैं घर ही नहीं जाता था। तो I had a van जिसके अंदर कुकिंग भी हो जाती थी। अच्छा। तो उन दिनों में that was Volkswagen, that was the first van. तो मैं उसमें सो जाता था, उसमें ऊपर खोलो तो वहाँ डबल बेड बन जाता था। आपकी कुछ मूवी के जो डायलॉग्स थे मेरी टीम ने निकाला था, उसमें था ये, एक जैसे एक है और चिल्ला, यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। और एक डायलॉग था, इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए क्यों छोड़ दूं, कभी नहीं। मतलब दीज वर रियली चीजी, चीप काइंड ऑफ डायलॉग, क्रीपी ना। देखो ना, अभी भी लग रहा है looking at me you feel creepy ना, but I am very lucky. I had the best of friends, best of the girlfriends, best of the companions in my life. And when suppose now after knowing me, if you meet me, you will feel creepy. No, you will not feel creepy. No, so but when I spoke on the phone with you, I was like 20 years back, I would think कि कभी नहीं बात करूँगी. Yeah. You know what I mean? ऐसा होगा ना, तभी तो आपने कभी याद नहीं किया होगा। अब क्या हुआ? Who were your girlfriends? वो तो बताओ आप। One at a time तो होती थी, कभी कोई ईरानी है तो कभी इंग्लिश है तो कभी all that kind of stuff. I had a live-in girlfriend also, frankly speaking, for 11 years. She had nobody else, but जब मैं कुछ भी नहीं था तब से मेरी दोस्ती किसी के यहाँ हुई थी, किसी के दोस्त के यहाँ। तो when I became an actor, so I moved her in my house. And once my parents came and they were, उनका कल्चर तो है नहीं कि लड़की बिना शादी घर में कैसे रह सकती है। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि उसको कहाँ रखूँ है, किधर भेजूँ। फिर समझाया लोगों को, ठीक है, दे हैड नो चॉइस, frankly speaking. But from the bottom of my heart, I never, exploited anybody. I had no godfather till today. And I did films with this point of view कि यार ये आदमी मेरे पास आया है, ही वांट्स मी, तो मुझे नो कहने की वो आदत नहीं थी। अब जैसे frankly speaking, आज
मेरी जगह कोई और होता, द स्टेट आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे फ्रॉम भीलवाड़ा टू दिस थिंग एंड ऑल दैट एंड दिस एलर्जी, इजीली आई कुड हैव मेड एन एक्सक्यूज, यू नो. एंड बिफोर कमिटिंग ऑल्सो मैं आई कुड हैव सेड, बहुत मैं आपको दिखा सकता हूँ फ़ोन पे. आजकल ये यूट्यूबर्स का बहुत हो गया, फैशन हो गया है. पाकिस्तान से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, और जी पॉड पे क्या बोलते हैं ना, वो इंटरव्यूज लेने के लिए अभी उसके सामने बैठना पड़ता है, ऑल दैट यू हैव टू सिट. तो इट इज़ वेरी बाइंडिंग. तो मे बी आई वाज फॉन्ड ऑफ यू एंड बट यू नो व्हाई, राइट? बिकॉज हम सबके चाइल्डहुड का एक अहम हिस्सा है आप. जब हम फिल्में देखने जाते थे तो जो द फियर फैक्टर, उस टाइम हॉरर फिल्में तो होती नहीं थी, तो हॉरर का मतलब आपका नाम होता था उसमें. हाँ वही ना. स्मिता जी, there was not a single film where I was not there. When I'm getting paid for some role, if I don't play that character, how will I justify? But आपने कभी डायरेक्टर से नहीं बोला कि मुझे कोई और रोल दे दो, मैं थक गया ये कर करके? I am sorry. Fortunately, I'll call it fortunately. Unfortunately इसलिए कि I never planned my life. कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा. शत्रु भी हीरो बन गया, विनोद खन्ना भी बना, that kind of. नहीं, and I found these roles more interesting, you know. What you are not. अभी बकरे का जो आप बोल रहे हैं, जो ये जो है हर पिक्चर में, आई गॉट फेड अप. रात को नहाने के बाद भी, जोड़ी कलर फ्लैडा जो भी छेड़ने के बाद भी, माई बॉडी यूज्ड टू स्मेल ऑफ मटन. अभी सामने बकरा बोल रहा है डेन के अंदर, और सामने बिंदु जी डांस कर रही हैं या हेलन जी डांस कर रही है. सारा दिन तो वहीं बैठना पड़ता था. और इसी तो इधर ही हवा एंड स्टिंकिंग, यू नो, सारा दिन जलता रहता था ना मटन. तो फिर मैंने एक दिन अपने आर्ट डायरेक्टर को पूछा, यार आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम. लेकिन मैं, ये तुम इतने अच्छे सेट लगाते हो, नज़दीक से लगता है कि रियल है. कांट यू मेक सम चिकन और सम बकरे फॉर मी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के. तो उसने आर्ट डायरेक्टर ने बना दिया बकरा. तो मेरा प्रोड्यूसर बहुत खुश. मैंने उसको बोला, कपूर साहब अभी ये बकरे वगैरह आप मत मंगाओ, बड़ा खर्चा होता है, हर रोज़ है, ये है वो है, कल सब बकरा भेजेगा आपको. नहीं गोली साहब आप कैसे करेंगे? और नहीं यार, फैमिली यार, कोई बात नहीं. और डॉक्टर ने जाके सुबह सुबह वो लॉग्स के ऊपर बकरा लगा के, हैंडल लगा के, रॉड लगा के, उसके ऊपर वार्निश वार्निश लगा के, रियल मटन जो होता है ना, अच्छा, पूरा का पूरा गर्दन से लेके पीछे तक लगा दिया. नीचे आग जल रही है. गाना कल जो कर रहे थे वो आज फिर शुरू हो गया. और सारा यूनिट जो होता था, पैकअप बोला नहीं तो डायरेक्टर ने, तो सब बड़े चाकू लेके आते थे पीस काटने के लिए बटर के, क्यों कल तो नया बकरा आएगा ना. It will be sticking. They used to carry butter, you know. There was a story once that जब माधुरी दीक्षित को ये बताया गया था that you know रंजीत will be molesting you, वो रो पड़ी थी. अरे रो पड़ी नहीं, उसने तो मना ही कर दिया था, रो रही थी, you know. तो ये मेरे को बाद में पता लगा. सब आर्ट डायरेक्टर, he told me, क्या नाम है, बंगाली आर्ट डायरेक्टर फेमस, he was the art director. हमारा डायरेक्टर था बाबू. He was from South. बिल्कुल लाइक टेडर मैन, यू नो, ऑल दैट. उसकी आवाज़ भी नहीं आती थी, और वो खुद जाके परे जाके बैठ जाता था एक्शन में. तो मैं पहुंचा, मैंने मेरा मजाक चलता रहता था. बस सेट पे ही, जैसे आप मेरी हीरोइन है, डार्लिंग थोड़ा उधर मुँह करो, मैं चेंज कर लेता हूँ. तो ऐसे करके नेवर यूज्ड टू गो टू मेकअप रूम ऑल्सो, वेरी नॉर्मल एंड ऑल दैट, ऐसे लाइक दैट. तो अब एक्सेप्टेड लाइक दैट, नहीं तो बोलेंगे नकली, यू नो. तो वो पता लगा ये सीक्वेंस है. फाइट मास्टर्स और फाइटर्स भी बड़े, यू नो, दोस्ती होती. ऑल दे यूज्ड टू बी टेक्नीशियंस. आई वाज वेरी कूल विद देम, एवरीबॉडी, नॉट अ स्टेटस लवर. अब क्या हुआ, शुरू हुआ तो इट वाज ए हैंड कार्ट होती है जो मजदूर लेके चलते हैं. उसका बाप बड़ा गरीब था, तो वो हैंड कार्ट पुल करता था. बंगाली एक्टर था वो. उसके ऊपर ही मोलेस्टेशन चालू, उसके ऊपर ही सब्जियाँ भाजियाँ जो कुछ भी रखी हुई थी, उसके ऊपर ही पकड़ के उसको कुछ था. और वो बड़ा रोना धोना चलता रहा. फिर मेरे को किसी और शूटिंग में जाना था. तो मैंने उनको बोला, यार टाइम खत्म हो रहा है, उनको बोलो. तो कोई बताया नहीं मेरे को कि माधुरी इज़ नॉट अग्रीइंग. तो अभी क्या हुआ, अल्टीमेटली शी मान गई कैसे भी है. तो फाइट मास्टर ने बोल दिया, वीरू देवगन्स फादर वाज फाइट मास्टर. उसने बोल दिया, जब एक्शन होगा ना, मैगजीन 1000 फुट की डाल दो, मतलब बीच में कैमरा कट नहीं होना चाहिए. तो फिर हो सकता है ब्रेक हो जाए, तो फिर बोले कि नहीं करने का. तो डाल के वो कैमरा चल रहा है, तो उन्होंने बोला घुमाते रहो उसको, कार्ट को, दिस थिंग, ये वो फलाना उसमें. और मैं क्या करता, ऑल माई हीरोइंस वर
very fond of me, and because I never used any force, I used to take my face behind their hair, बालों में छुपा के उसके कानों में बोलता था, अब मेरे बाल खींचो पीछे से, हाँ, अब मेरे मुंह पे अपने नाखून मारो, तो I used to give commentary to them, and not using my force and all that. तो वैसे वो कानों मारे थे, I used to react, बाल खींचते, फिर ये जो डायलॉग वाले चिल्लाओ जाने मन चित्रा चिल्लाओगी, तुम्हारी आवाज़ टक्कर आकर तुम्हारे पास ही आ जाएगी, और खुद ही बोलते थे बना के, मजाक करते थे। तो पर वो काटती थी लड़की हाथ छोड़ाने के लिए, काटो जाने मन, जितना काटोगी काटो, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। हाय हाय, देखो इनको देखो, ऑडियंस बोलेगी कैसे इंटरव्यू कर रही है, आई थिंक शी हैज टू थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड ऑल दैट। Such a cheapy So dialogue. you just tell me, so that means I'm not ये आपने अपने आप लिखा था? ऐसे स्पॉन्टेनियस बोला करते थे, या डायलॉग्स तो हीरो हीरोइन से होते थे, हमारे क्या होते थे, हम तो खुद ही बोल देते थे। तो आपको आया कहाँ से इतना गंदा सा डायलॉग? इसमें क्या गंदा है, चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ टकराई, इधर कोई है नहीं, जितना चिल्लाओगी तुम्हारे पास आएगी आवाज़। अब ये काटेगी दूर से, दंदी कैसे बढ़ेगी, पंजाबी बोलो, शी हैज़ टू होल्ड माई हैंड एंड बाइट, तो काटो, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। आपकी गर्लफ्रेंड्स हुई कैसी? How can anybody I be had a the girlfriend of yours? Best of the girlfriend, कैसे? because in my real life I am very normal. You never use these lines in real life? नहीं, कभी नहीं। I'm very respectful and all that. So when you were actually wooing a girl in real life, आपने क्या? You would be a nice man. You would be your. No, I never pretended. I was normal. I'm telling you. ये शॉट हुआ, उसके बाद खुद ही मजाक कर रहा है, और तेरा आजकल का लफड़ा चल रहा है, और क्या हो रहा है, फिर बोलेंगे सर शॉट रेडी, आते हैं, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते, शॉट दे दिया, फिर आगे, अच्छा और यार हमारी बारी कब आएगी, ऐसे ऐसे मजाक चलता रहता था। तो इट वॉज सो फन, इट वॉज लाइक फैमिली। इट्स नॉट दैट कि एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में ये 4 बाउंसर खड़े हुए हैं। करेक्ट। इट वॉज, इट्स ऑल बकवास, हाँ। उधर तो क्या होता था, सबसे ज्यादा किस लीडिंग लेडी को आपने मोलेस्ट किया था? आई नो इट्स अ वेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेरे को कैंसिल कल्चर वाले मेरे को आज ही कैंसिल कर देंगे कि आपने मजाकिया तौर पे मोलेस्टेशन की बात कर दी, बट आई एम आस्किंग यू, molestation is a part of our job, the villain is not bad, तो कौन सी हीरोइन थी? it has to be a compulsory। देखिए पिक्चरें जो बनती थी उन दिनों में, एक फार्मूला होता था, विलन होता था, वैम्प होती थी साथ में, पुरानी पिक्चर भी लो, प्राण साहब की, अजीत साहब की, एंड ऑल दैट। हीरो होता था, हीरोइन होती थी, एक कॉमेडियन होता था, महमूद साहब होते थे, मुकरी साहब होते थे, एक वो उनकी गर्लफ्रेंड होती थी, जैसे जैसे अरुणा ईरानी हो गई, शोभा खोटे हो गई, ऐसे लाइक दैट, इट यूज्ड टू बी टीम। तो एक ग्रुप होता था, फिर कोई नौकर होते थे, लालू और राबू और ऐसा कुछ होते थे, तो ये फार्मूला, हंगल साहब होते थे, यू अंडरस्टैंड। तो बट इट यूज्ड टू बी लाइक ए फैमिली, घरों से खाने आते थे, इट्स नॉट दैट कि बैठे हुए वो अपने कमरे में बैठे हैं, गप्पे 10 पैसे, सॉरी 4 आना पॉइंट रमी खेल रहे हैं, रमी वाला नहीं तो ताश खेल रहे हैं, और सॉरी वो चेस खेल रहे हैं, शॉट रेडी। और जैसे मैंने बोला था रोल में डूब जाते हैं, तो सारा दिन चाकू लगे होते, रोल में डूबे रहेंगे तो घर में भी रोल वही चलता रहेगा, तो दिया शॉट दिया, खत्म। एंड बिलीव मी, इन माई लाइफ Smita ji, I have not seen more than, if I remember, not more than 15-20 pictures. तो आपकी I don't even see my own films. I only see till I have to dub. आजकल मॉनिटर होता है, I never go on monitor. अच्छा। Because if my shot is bad, hero's shot is bad, he says take one more. ले लेंगे। आजकल फिल्म भी नहीं होती, रॉ स्टॉक नहीं लगाते ना। आप हीरोइन है, आपका शॉट खराब हो जाता है नेक्स्ट शॉट में, हीरो का अच्छा हो गया तो फिर आप भी बोलेंगे यार एक मेरा भी ले लो, एक और टेक ले लो, ले लो। पर अगर रंजीत आया तो उसने भी बोला, तो फिर खत्म कब होगी पिक्चर? आई लीव टू द डायरेक्टर बोला ओके कट इट वन, तो मुझे बोलते हैं कई बार देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं नहीं तुमने बोल दिया ओके तो ठीक है। एंड इन दिस कोविड डेज विल यू बिलीव मी, मैंने सिर्फ 2-3 वो देखे वेब सीरीज, उसमें 2 तो इंग्लिश थे, हिस्टोरिकल थे, और इंडियन तो एक ही देखा था, उसके बाद नहीं देखा मैंने। तो फिर क्या, हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड? ऑल वल्गैरिटी, गालियाँ भी गंदी गालियाँ, आपने देखी होगी पिक्चरें आजकल की जो बनती हैं। हैं। तो आपकी फिल्मों में कोई गालियाँ नहीं थी? कहाँ होती थी बताइए ना, कौन सी पिक्चर में गालियाँ? मैक्सिमम उल्लू का पट्टा हरामजादा है ना, अच्छा होता था।
नहीं, ये आजकल तो वल्गर गालियाँ होती हैं ना. यू फील एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली हो तो बिल्कुल ही गड़बड़ ना. एंड फॉर नथिंग, इफ यू टेक आउट दैट सीन टुडे, इतने फिल्म मेकर हैं, ये यार ये निकाल दो, इधर एक आइटम नंबर डाल दो, ये निकाल दो, इधर ये मोलेस्टिंग सीन लगा दो. तो उन दिनों भी तो होता था, बिंदु जी की डांसेस होती है. कितने हेलन जी और बिंदु जी उन दिनों में देखो क्या ग्रेस होती थी. देवर और वाहिदा जी सब गाइड में देखो क्या डांसेस थे. देवर लर्न, दे हैड लर्न दिस भरतनाट्यम फलाना ढिगड़ा, ये ऑल दैट वाज एन आर्ट. आजकल तो अभी हेलन जी की ड्रेसेस भी रिवीलिंग नहीं होती थी. वेरी ग्रेसफुल एंड कॉशियस. वो अपना ही बनाती थी कहते हैं. हाँ नहीं होता है, मैं बोला ना सबके अपने, आप खुद थोड़ी बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन ही देगी ना. वो अरुणा ईरानी जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था हेलन जी यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड और वो वहाँ पे देखती थी कि कैसी ड्रेसेस हैं और फिर वो यहाँ आके फिर वो ड्रेस डिजाइनर को बता दिया, टेलर को. उस टाइम डिजाइनर्स क्या होते थे. जैसे एल्विस प्रेस्ली ने बेल बॉटम शुरू किया, इधर भी चालू हो गया. हाउ द फैशन ट्रेवल्स. आपके भी वो जो लंबे कॉलर बटन खुले, रंजीत के बटन खुले तो शुरू. और अभी ये, हालांकि आई डिड ओनली वन डेज रोल, यू नो, आई वाज नॉट डूइंग इट. दैट बिकेम द मोस्ट फेमस. टिल टुडे आई गो, टिल येस्टरडे ऑन द फ्लाइट ऑल्सो, सर एक बार वो कर दीजिए ना करके ऐसे. तो ऐसे छमिया, अभी एक लड़की को क्या उसके नाम से बुलाओ, मैं से उठा के लाए हैं तो छमिया इधर आओ, ऑल दैट काइंड ऑफ. तो ये थोड़ा सा विलेनिश है. बाकी रहा कि इट्स नॉट दैट कि आई एम ऑलवेज. सो व्हेन यू गॉट मैरिड, डिड योर वाइफ्स फैमिली से कि नहीं इससे नहीं करनी भाई, इस बंदे से नहीं करनी? व्हेन आई मैरिड, actually I was looking for a new boy and 2 new girls. I got fed up of doing this, pulling sarees and rapes and all the 8 films every day in Bangalore, every night in Mumbai. I don't believe I'm doing this interview. Yeah. Same thing, na, monotonous. Monotonous. पकड़ा साड़ी, पकड़ी साड़ी खींच रहे हैं and all that, घूम रही है and all that. आजकल की लड़कियां साड़ियां नहीं पहनती, मैं क्या खींचूं, क्या फाड़ूं. मैं तो फैशन, मैं मजाक में बोल दिया था, फैशन ने मरवा दिया मुझे. तो माई डॉटर स्टार्टेड दिस थिंग, शी वाज इनटू फैशन डिजाइनिंग. तो शी वाज रनर अप इन अशोका होटल में थी ये फंक्शन एंड पार्टी. तो देख लिया मेरे को, कोई सेठी है, उनका चेयरमैन है, पता नहीं कौन है. तो गोली साहब ऊपर आइए ना, तो स्टेज पे बुला लिया. तो मैं बोला, देखिए साहब, बेटी कपड़े बनाती है, मैं फाड़ता रहता हूँ. और मैं उसकी एक पेंटिंग बना रहा हूँ आजकल. आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग. आई हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर. तो आई लाइक हर वन फोटोग्राफ. शी इज एडवेंचरस, थोड़ा माउंटेन रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल दैट. तो उसकी कोलाई ग्लेशियर पे नो, बट 14 थी अबव, वो बाल उड़ रहे हैं और वो शी इज बोल्डर के साथ ऐसे खड़ी. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. मैं इसके वाइल्ड फोटो है, इसके मैं पेंट करता हूँ. और विंटर है, स्नो में वो कलरफुल स्कार्फ वगैरह तो होता ही है जब जाते हैं ये लोग माउंटेन, ताकि दूर से भी नज़र आ जाए कुछ. दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द इफ यू गेट लॉस्ट एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा ऐसे साउथ इंडियन कैलेंडर लग रही है ना मेरे को. तो मैंने उसको हटा दिया बाल से हो, तो उसको मैंने कुछ और बना दिया. फिर मेरे को यार बनाने के बाद पता लगा यार ये गड़बड़ है. इफ़ आई हैपन टू मीट यू बाई चांस विद दैट पेंटिंग को मैंने इतनी रिपेयर की है वो, कि वो उसकी आंख जो है ना, वो सैंड पेपर से पेंट निकालता था ताकि दूसरा कोटिंग नहीं चढ़ती थी ना, ऑयली पेंट. तो इसको रफ कैसे करूँ तभी पेंट पकड़ेगा. उसमें क्रैक में पेंट कर रहा हूँ तो उधर से लाइट आ रही पीछे से, पीछे मुड़ के देखा तो कट गया, पर उसके ऊपर बैंडेड लगाया हुआ है पीछे. एनीवे, तो इस तरह मैं आपसे पूछ रही थी अबाउट योर वाइफ्स फैमिली. मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ. तो आई वॉज फेड अप कि ये अभी क्या है यार, 2 रोटियां और खानी है. माँ बाप आते हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं है. आई लॉस्ट माई फादर, फर्स्ट डेथ इन द फैमिली. आई वेंट टू शूट. आई यूज्ड टू हाउल इन द मेकअप रूम इन हैदराबाद. आई हैड अबाउट 75 रिलेटिव्स इन माई हाउस. वो 4 पहियाँ लगी हुई हैं और शामियाना लगा हुआ और हलवाई बैठे हुए हैं. आई टोल्ड माई वाइफ, मैरिड हो गया था, माई डॉटर वॉज 6 months. आई सेड, नाजी, माई फादर हैज़ नेवर बीन अक्यूज्ड ऑफ एनीथिंग एवर इन लाइफ. I don't want people say यार रंजीत का बाप मर गया, यार हम भी मर गए, सेट तोड़ दिया. I was a star, you know, most wanted. तो I said I don't want to cancel and he to be accused for that purpose. तो मैं गया मेकअप रूम में. I used to howl and then chilled soda होता था आइस बॉक्स में,
आई यूज्ड टू स्प्लैश माय आईज एंड वेक अप, जाके वो साला एंटर पकड़ के, वो डांस था श्रीदेवी का, दत्त साहब थे, सुनील दत्त भी इस पिक्चर में थे, वो देख के शाम की फ्लाइट से वापस माई रिलेटिव्स थॉट कि शायद कोई वकील के पास गया हो, विल होगी भी, आई हैड 2 younger brothers and sister also. So I didn't have to clarify, but I finished. Because of me being in 80 films, I don't remember कि I had any complaint और किसी का नुकसान हुआ हो. इधर मैं डाकू बना हुआ हूँ, ये बाजू वाले कमरे में मैं वो बना हुआ हूँ इंस्पेक्टर. अब जो छोटा प्रोड्यूसर है, मैंने कभी किसी की शूटिंग कैंसिल नहीं की, हाँ जो उसको डेट दे दो यार, बड़ी पिक्चर है तो शमी कपूर वॉज डायरेक्टर, राजेश खन्ना हीरो. तो अभी नहीं, अभी मेरा कसूर थोड़ी है. तो मैं कह रहा बोला गोली कैसे एडजस्ट होगा, गाना ख़त्म नहीं होगा. मैं कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, आई विल कम ड्यूरिंग लंच टाइम, आई वोंट हैव लंच, आई वोंट स्लीप, वॉट एवर इट इज़. तो आप इधर शॉट लगा लो, इतने में शॉट लगाने में टाइम लगता है, क्यों जी, लाइटिंग करने में टाइम लगता है ना थोड़ा. मैं बोला उधर शॉट दूंगा, फिर इधर आगे, पर इतना दूंगा कि पूरी ड्रेस चेंज नहीं कर सकता, टाइम नहीं है. आई डोंट वांट हिम टू सफ़र. आई यूज्ड टू टेक आउट माई डाकू की पगड़ी, टेक आउट माई मुस्टैच पुलिस की, और पुलिस का जो कैप होती है. आई फिनिश दो सीन्स लाइक दैट. सिल्वर जुबली फिल्म्स, नोबडी बॉदर्ड. डाकू की पिक्चर में शॉट दे दिया, बाई चांस इट वॉज नॉट दैट डाकू, नोबडी नोटिस्ड. ऐसे काम किया मैंने. गाड़ी में सो जाएगा, स्टूडियो में जाकर सो जाएगा, यू नो, लाइक दैट. आई एंजॉयड. इट वाज नो मनी. आई हैड गिवन माई पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन द स्टैम्प पेपर टू माई सेक्रेटरी टू डील विद ऑल द मनी, टू बाई सेल एनीथिंग. A very good friend, Manmohan Desai, was a big producer director. He fired me once. कि साला तेरे को चेक साइन करने का टाइम नहीं है, तेरे को बेच डालेगा, तेरे को पता भी नहीं लगेगा. मैं मन जी क्या बेचेगा अपने पास, हम क्या लेके आए थे क्या. नहीं, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ऑफ फिल्म एक्टर्स जिन्होंने ऐसे ही किया और वो लुट गए, उनके पास कुछ नहीं रहता. I don't think so anybody had done, because the same man Joy Raj Babbar, उसने उससे भी पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी. अदरवाइज यू नेम वन एक्टर कि जो लुट गए, वो लुटे और वजह से लुटे. मे बी इन फिल्म मेकिंग, नॉट गिविंग अथॉरिटी ऑफ मनी टू समबडी, यू नो. They were not, everybody was, name anybody, you know. You hear of stories where actresses, you give me a name, you know, where gave it to their father, gave it to so-called husband. वो तो ठीक है ना, हस्बैंड को तो देखे ना, नॉट अ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट. हाँ. हस्बैंड हुआ, फादर हुआ, वो तो चलेगा. And it just अभी भी till today. Like you think of परवीन बाबी, उन्होंने इतनी पिक्चर अकेली थी, क्या करेगी अकेली, खत्म हो गया. वेरी डियर फ्रेंड, अभी अकेली थी. शी वॉज टू ड्रग्स, शी वॉज दिस थिंग, शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी, नो एयर्स एंड ऑलवेज स्माइलिंग टाइप. हम तो ऐसे प्यार से फावड़ा बुलाते थे, उसके दांत ऐसे बग टीथ था, तो फावड़ा बुलाते थे, तो ये इतना बुरा मान के बैठ जाती थी. एंड नो बिचिंग, frankly speaking, no उसकी शिकायत उस पर. Once she was very upset and she was crying and I asked, we were in Kashmir, अभी I don't mind quoting, so it's a fact. क्या हुआ परवीन, उसको एक पिक्चर बनी थी सिलसिला, परवीन बाबी वॉज द ओरिजिनल हीरोइन, उसको निकाल दिया. और एक जो उन्होंने अपने गिमिक के लिए कंट्रोवर्सी, फेमस रेखा को और जया भादरी को उसमें कास्ट किया. Otherwise, it was Parveen Babi and Rekha. And then Parveen Babi was thrown out. Then Rekha came this side and Jaya Badri को दिया सिलसिला. और पिक्चर चली नहीं. बद्दुआ लगती ना किसी की. इतना बड़ा, you know, it was कि कोई भी जाएगा, you know, रिमोर वगैरह भी. So lots of people would come and tell you their personal. Not lots of people. जैसे कोई अपना तो बात होती है ना, दिल खोलना होता है ना. तो अभी संजीव कुमार, हाँ संजीव कुमार थे, ये बाजू वाला बंगला, उसको ले लो भाई, ले लो भाई. नहीं, तो शाम को तो हर रोज मिलना ही होता था ना. कि वो भी तो ऐसे ही हुआ ना, उनके साथ भी तो ऐसे हुआ. इट वाज क्वाइट ट्रेजिक. जो नहीं, उसकी तो पूरी फैमिली देखो, ही यूज्ड टू लिव इन पाली हिल, उसको कई बार था. अभी अपने अपना देखो, हर आदमी को स्पेंड होता है. मेरे को ये चीज़ आई कांट अफोर्ड बट आई वुड लव टू हैव इट, तो कैसे भी मैं, चलो भी ले ले बच्चों, कर्जा लेके ले लो. वो ही वॉज नॉट दैट, ही डिडंट वांट टू, बट हिज फादर डाइड, हिज ब्रदर डाइड एंड सो मेनी पीपल डाइड, यू नो.
वो तो डेस्टिनी होती है. अभी अमजद खान चला गया, यू नो, और भी कभी देखो ना कितने एक्टर चले गए, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ. एनीबडी कैन गो. शशि कपूर, आई यूज्ड टू वर्क विद ऑल दिस गाइस. दत्त साहब, राजकुमार, राजेश खन्ना, मतलब एवरी डे वी आर टुगेदर. 4-5 हीरो होते थे, 4-5 विलन होते थे. तो अब लकीली वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर विद ऑल दिस टॉप एक्टर्स एंड ऑल दैट चलता था. आई लेफ्ट शोले, दे केम टू बी इन बैंगलोर. हाँ, वो किस्सा सुनाइए, क्योंकि गब्बर सिंह का रोल आपको पहले ऑफर किया. नो, नॉट पहले मुझे नहीं ऑफर किया है. द ट्रूथ इज डैनी को दिया था. डैनी को किया था. और एक पेपर आता था स्क्रीन, उसे फुल पेज पे उसकी फोटो डैनी की आई थी. और साथ में धर्म जी एंड संजीव कुमार, जीपीसीपी की. हाँ, वही शोले जो है. शोले, हाँ. तो ही गॉट स्टक इन धर्मात्मा इन अफगानिस्तान. फिरोज खान की पिक्चर. फिरोज खान बोला यार उधर 3 हीरो है, किसी को मालूम थोड़ी गब्बर सिंह का रोल क्या बनेगा या क्या होगा. करेक्ट. नोबडी न्यू. एंड ही कन्विंस्ड हिम कि मैं तेरे को हेमा मालिनी के साथ में गाना दे रहा हूँ यार, थर्ड नहीं यार, उधर 3 हीरो क्या करेगा. डैनी भी सोचा बात तो ठीक ही है. तो उनका एंटायर यूनिट हैड कम टू बैंगलोर. And he was stuck in Afghanistan. Communication was very bad. And after finishing my schedule in Dharmatma, I came earlier. So I had shooting in Bangalore. Inka set bhi Bangalore. We living in the same hotel, all unit and everybody. So they came to me. I was shooting for S. Ramanathan in the Mysore Palace. They came कि गोली जी वो तो डैनी साहब तो आ नहीं रहे, हमारा यूनिट आ गया है, बहुत खर्चा फलाना टिकना, ऐसे थे, शेड्यूल ख़त्म कर रहे हैं, डेट्स वेट्स. तो मैं बोला तो वो बैंगलोर के आगे शूट कर रहे थे, वो रामनगर. हाँ. या इट वाज अबाउट 50 किलोमीटर. या जहाँ वो पत्थर है बड़े बड़े. हाँ जी, पहाड़ है. वी यूज्ड टू शूट. आजकल तो वैनिटी वैन्स आ गई और पहाड़ों के नीचे हम लोग गर्म पत्थरों के नीचे ऐसे हीरोइन जो स्मगलर लोग होते थे ना, दे यूज्ड टू ब्रिंग प्लास्टिक का पंखा होता है ना, बैटरी वाला. वो उनके ट्रे में होता था, मेकअप ट्रे में. तो उनको मारते थे ना मेकअप मैन, तो हम भी गाल के साथ गाल लगा के चलो थोड़ा इधर भी मार. ऐसा लाइफ था, यू नो. एक छाता ढूंढते थे, उसके नीचे सारे घुस जाते थे. और रिफ्लेक्टर मांगते थे कैमरा मैन, यार एक रिफ्लेक्टर दे दो यार, उसके नीचे घुसे होते थे. और सब डाकुओं के पीछे एंड ऑल द गेटअप. इन दैट हीट वी यूज्ड टू शूट. सो दे केम टू यू एंड सेड कि गब्बर का रोल कर लो. नहीं, गब्बर का नहीं बोला, कि उन्होंने बोला डैनी नहीं आ रहा. मुझे तो मालूम नहीं था रोल क्या है. अच्छा. तो डैनी नहीं आ रहा, तो मैं बोला डैनी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही केम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड every evening we used to be together and we were doing some pictures together. Danny, myself. So till today, if you ask me a few friends, so I'll count Danny, you know, in the top list. Okay. तो साहब वो क्या नाम लेते हैं, मैंने बोला I will not do it. तो either you get me no objection letter from him, or let him talk to me. If he says कि गोली तुम कर लो, I can't come. तो आई नो वाई ही इज नॉट कमिंग. तो आई रिफ्यूज्ड. एक और पिक्चर मैंने ऐसे छोड़ी थी. कौन सी? अभी अमजद वाज क्या नाम लेते हैं ये, ही वाज इन द पार्ट ऑफ द यूनिट आल्सो, यू नो. ही हैड डन थिएटर, ही हैड डन मूवीज आल्सो, बट इट वाज डेस्टेड. हो सकता है मैं काम करता शोले अच्छी गब्बर किसी को अच्छा लगता. या व्हिच इज ट्रू. तो रिग्रेट्स है ऐसी पिक्चरों की कि मैंने आई हैड बेटर रोल देन लाइक कौन सी पिक्चर चल जाती है यू डोंट विद योर फिल्म. करेक्ट. अभी राजपूत में बड़ी स्टार कास्ट, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, आई वाज द मेन विलन. तो वो जितनी वो कब चली फलाना चली, और फिर क्या होता, फर्स्ट 2 weeks शोले वाज यू नो डिक्लेयर्ड फ्लॉप फिल्म. और सब यही बोलते थे यार, स्टूडियो में खबर मिलती हो, और 3 यार इतने बड़े बड़े हीरो हैं यार, साला विलन बड़ी पतली सी आवाज़ में बोलता है, कुछ महंगा है साहबा, ये वो दैट काइंड ऑफ स्टफ. अब अभी तक उसके अमजद के प्लेबैक में आते हैं, गब्बर कालिए कितने थे, उसके डायलॉग अभी तक चलते हैं, यू नो. सो इट इज़ द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड डेस्टिनी लीड्स, यू नो. एंड आई नेवर, मैं तो कितनी जब पिक्चरें छोड़ी, आई हैड 80 pictures ऑन द फ्लोर व्हेन आई वांटेड टू मेक माई ओन फिल्म. So I didn't want कि my assistant should go and direct my film. Take एक shot ले ले यार, मैं दूसरी shooting करके आता हूँ. I wanted to enjoy. It's at that height you decide that I don't want to work anymore. And I stopped signing pictures to send to some actors. यार मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर लो. अब क्या हुआ, उनको टाइम लगा मुझे
Then I signed officially. I wanted 2 new girls and 1 new boy. I used to crave always. Prakash Vara, Raj Saab, मनमोहन देसाई, मैं ये इतने बड़े बड़े स्टार को लेके क्यों पिक्चर बनाते हैं? हर पिक्चर में अमिताभ बच्चन, हर पिक्चर में वो, हर पिक्चर में वो, बड़े बड़े एक्टर. नया लड़के इंट्रोड्यूस करें, नई लड़की इंट्रोड्यूस करें तो ज़रा रौनक होती है. आई रियलाइज लेटर, आई वॉज टोल्ड कि इफ़ यू हैव ए स्टार, यू आर पेइंग 1 एक्टर X amount, but we get 6 territories that is enhanced. हमारा बजट इतना हो जाता है. अच्छा. हमको इतना सा जो न्यू पिक्चर में खर्चा, बजट, पिक्चर तो उतने में बिकेगी ना जो उसका वैल्यू है, तो उसमें हम मान लो 10 डांसर चाहिए या 50 घोड़े चाहिए, तो बोले यार 5 घोड़ों से कर लो, बजट अलाउ नहीं करता. तो दैट इज़ वाई दे यूज्ड टू टेक द स्टार. जब मेरी पहली पिक्चर की उसने बोला ना कि नया पिक्चर, नया हीरो, नई लड़की लेके मत बनाओ, पर मेरा मूड और था. तो लुकिंग फॉर 2 न्यू गर्ल्स एंड लिविंग द फिल्म्स, कैन यू इमेजिन? एंड आई फिनिश्ड ऑल माई फिल्म्स. Yeah. All films. Then I started my film. And I felt very proud. The day, like, I bolled a creepy, so all censor board, they, when my application went for the censorship, Vinod Khanna, my hero, he was known as a sexy Swami, Rajneesh. Chal Sanyasi wala. Because of that. Otherwise also a very good looking man. Correct. Gurdaspur se. गुरदासपुर से थे ना? कहीं से भी हो, तो गुड लुकिंग तो कहीं से भी हो सकता है ना. तो मैं तो उसको नहीं. But there was a whole bunch of you ना. आप अमृतसर से, वो गुरदासपुर से, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, सब पंजाब के. एक रेस थी तभी. अभी आजकल सब वहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं. बिहार से. उस वक्त राज कपूर, all of you were पंजाब, पेशावर, देव साहब भी, सुनील दत्त भी, लाहौर से सारे, राजकुमार भी, all big stars. चले anyway. It keeps on changing. Trend. Heroines होती थी South Indian. हाँ. Mostly. Correct. Because they were talented dancers and all that kind of stuff. Most of them देखो ना, वैद्या जी, विजय तो आपके हीरो विनोद खन्ना थे और हीरोइन? विनोद खन्ना, किमी काटकर. So what happened? वो शादी का पूछा था आपने. तो मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा. लड़कियां नहीं मिल रही. I was frustrated. तो मुझे कोई भी स्पॉट बाय चाय वाला यार था, उसको भी कहानी सुनाने शुरू कर देता था. आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद दैट. तो मैंने एक दिन चंकी पांडे, हिज मदर वाज देयर, शी यूज्ड टू रन क्लिनिक था, सैलून क्लिनिक जिसको बोलेंगे, टू ब्यूटिफाई द हीरोइंस. डॉक्टर पांडे. डॉक्टर पांडे, स्नेह पांडे. मैं उसको एक दिन ऐसे कहीं मिला. मैं बोला, मैं स्नेह जी, वो आपके पास तो कितनी लड़कियां आती होंगी यार, को कम से कम एक तो मुझे तो भेजिए ना, मैं आई वांट डेस्परेट टू स्टार्ट माय फिल्म. तो उन्होंने इसको भेजा, मेरी जो वाइफ है अभी, उसका नाम नाज़नीन कोई है सरदारनी, नो. तो नाजी को भेजा. तो मैं उसको मिलता, देखते ही आई सेड शी इज़ फिट फॉर दैट. मॉडर्न भी लग रही थी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी लग रही थी, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. फाइनल हो गया. अब मुझे दूसरी लड़की चाहिए. तो माधुरी नहीं आई थी. माधुरी को सुनाया, तो वो दूसरा रोल तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, शशि वाज टेकन एज अ गर्लफ्रेंड आल्सो इन द प्रेस. एंड कहाँ जी उसकी गर्लफ्रेंड है. पार्टी वार्टी में जाना तो इकट्ठे चले जाते थे, बट नॉट दैट कोई लव वगैरह था, ऐसा नहीं था कुछ. देन और भी कुछ लड़कियाँ, जिसको श्रीदेवी, वो बोली मैं तो क्या नाम लेते हैं, कैसे ये फलाना फलाना, बहाने कोई ना कोई बनते थे. हालांकि मैं इनके सबके साथ काम कर रहा था. एंड आई वाज नॉट आस्किंग एनी फेवर. First I had signed Dharamji, Rekha and Jayprada for these 3 roles. Or Rekha last moment, she had some differences with Amit, but then she fell in again, उनका compromise हो गया, कुछ भी हो गया. तो she asked me कि यार गोली, गोपी बुलाती मेरे को, गोपी मैं तेरी शूटिंग रात की डे फॉर नाइट कर लिया करूँगी. तो मैं बोला, तो मैं तो डोरमेट बन जाऊँगा इसको, knowing her, all that kind of stuff. So I said, you send my money back because I have to sign somebody else, So then how I changed. Then Vinod Khanna came back from America. So then because इकट्ठे हम लोग बीच पे, रात को 2 बजे 3 बजे जाते थे. All that we had that. So he was fit also for that role. अभी उसको ले लिया. तो इस लड़की के फादर को हमने बोला कि देखो जी, ऐसे ऐसे कास्टिंग में जो प्रॉब्लम है, एंड डोंट फील दैट आई एम वन ऑफ दैट एक्सप्लॉइटिंग टाइप ऑफ दिस थिंग, and I'm changing my whole star cast.
तो नहीं जी पापा जी वो सरदार थे तो फैमिली नहीं जो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है जी. This girl also, my wife, she also felt she was more of working behind the camera and all that. But she was fit for the role also. तो उसको भी कोई अंदर से तो था ना इतना बढ़िया रोल एंड ऑल दैट यू नो. तो एंड द फिल्म वाज आल्सो बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ हॉर्स रेसिंग, a relationship with the horse and the man. I had played on that. And all this कौन सी फिल्म थी ये, नाम क्या था? It's not called कारनामा. कारनामा. I had called it किसके लिए. हाँ. Because I asked myself, मैं किसके लिए काम करता हूँ. मैं यार दोस्तों यार मेरे माँ बाप आते हैं, टाइम नहीं है, और मेरे ड्राइवर ने एयरपोर्ट पे छोड़ना था, और साला ताशबाज खेलने में बैठ गया. ये सब एक्टर तो इधर ही रहते हैं ना, और मैं शूटिंग में दूसरा ड्राइवर लेके चला गया था. मम्मी गई टैक्सी में, तो फादर ने डांटा आपको फ़ोन पे, इसलिए तो हम बॉम्बे आते नहीं हैं. आई वांटेड टू शिफ्ट बॉम्बे. तो आई गॉट वेरी डिप्रेस. मैं वेजिटेरियन हूँ, एक आध रोटी खानी होती नहीं खाते, काय को काम करें. अभी आज 500 पिक्चरें 600 हो जाएंगी. आज मान लो इतने करोड़ है तो कल को इतने करोड़ हो जाएगा. क्या एक जीरो लगाने से क्या है लाइफ में? इट इज नथिंग. सो आई हैड नॉट मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट इन माई लाइफ. Did you fall in love or was it just? It was not fall in love, you know. अभी बोलने को companionship. तो not a companionship also, and love शब्द तो कहीं हुआ नहीं. मैं frankly speaking broadly. बाकी I had good relationships, you know, healthy relationships. You didn't fall in love ever? No, I was committed. I was committed with that girl, you know. जो 11 साल जो 12 years के बाद तो लोग साला डिवोर्स ले लेते हैं. 12 years के साथ बाद में हमने उसको पक्का किया रिलेशनशिप को. कटिंग क्रूडली एक का हो गया, फिर केबी काट कर साइन किया, और फारा जो एक लड़की आई थी उसको इंडियन रोड के लिए साइन किया हमने. फिर आई जो तबू की बहन है. तबू की बहन बड़ी थी, पहले वो आई थी. देन आई इरेक्टेड द सेट एट माई फार्म. आई हैड अ फार्म. मुझे रहने का शौक था, यू नो. तो हार्डली एनी, यू नो, 80 kilometers फ्रॉम हेयर, गुड रोड. तो आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली हाउस, लिव विद माई पेरेंट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. वहाँ से 1 घंटा लगता था. मैं सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ आजकल भी. मैं 8 बजे भी गाड़ी में बैठूँगा, 10 o'clock ईजिली विद मेकअप आई बी ऑन द सेट इन बॉम्बे. इट वॉज ऑन पेन कपोली रोड, यू नो, ऑन करनाला बर्ड सेंचुरी. ये किसके, मेरी पिक्चर कारनामा जो है, इसका नाम रखा था किसके लिए. मैंने अपने आप से ये जो बीच पे हम स्विंग ट्रंक्स पहन के भागा करते थे, राइडिंग किया करते थे. दैट्स हाउ मेड मी लर्न राइडिंग, यू नो. ही यूज्ड टू कॉल हिज हॉर्स एंड माय हॉर्स फ्रॉम द स्टेबल. तो क्या मैं बोल रहा था आपको, किसके लिए मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ. आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर पेरेंट्स, आई डोंट ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो मैंने साइन करनी बंद कर दी. बंगला सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जो भी शौक थे पूरे हो गए. पिक्चरें भी कर ली. तो आई आस्क्ड माई सेल्फ किसके लिए काम कर रहा हूँ. वहाँ से मेरा टाइटल निकला. देन सोसाइटी में जहाँ मैं घूमता था, जो एसोसिएशंस थी, उनकी फैमिलीज इंटरनल मैटर्स को देख के, राइटर क्या होता है, आई एम नॉट अ राइटर. आप कुछ देखते हो, कंसीव करते हो, अडेप्ट करते हो, कुछ यू नो इमेजिन भी करते हो, तो वहीं से कहानियाँ बनती हैं ना. आई डोंट नो, यू आर अ राइटर. तो ऐसे ही होता है ना. तो मेरे का कुछ कैरेक्टर लाइफ है यार. देखो उस लड़की के पास सब कुछ है, शी डजंट नो द फील ऑफ द ग्रास. इतनी रईस है कि ग्रास पे कभी चली नहीं हो. तो इस तरह था. अमरीश पुरी था उसमें, रिच मैन. शी बिकम्स अ फॉस्टर मदर, यू नो, अनवेड मदर. एंड देन वो बस पिक्चर बड़ी डिसेंट थी. सेंसर बोर्ड रिकमेंडेड. They asked me to send a print to the members of parliament. They thought, ये बीच में टॉपिक चेंज हो गया हमारा, कि रंजीत इज द ही मैन रेपिस्ट एंड विनोद खन्ना ही मैन, सेक्स बॉम्ब के भी काटकर, एंड अमरीश पुरी इज देयर. तो इसमें तो बड़ा मसाला मिलेगा काटने को. नो रियली. मेरे असिस्टेंट का फ़ोन आया, कहता सर ये तो पूरा थिएटर भरा हुआ है, ये 5-6 मेंबर होते हैं, तो बहुत लोग आए हुए हैं. तो मैं सोचा शायद मेनका गांधी का कोई लफड़ा होगा, बिकॉज उसमें घोड़ा भर जाता है, मारते थे अमरीश पुरी. तो एनिमल क्रुएलिटी के बारे में उसने कुछ कंप्लेंट की होगी, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा लोग देख रहे हैं कुछ. मैं यार दिखानी तो है, तुम दिखाओ, मैं आता हूँ. आई वेंट देयर. इंटरवल में वो निकले, दे हग्ड मी एंड आई वाज इन टीयर्स.
We never expected this kind of clear use certificate, you know. It's the same with this interview, Ranjit ji. When I started the interview, I thought कि he's a man who for all my childhood I disliked so much. जी. But आपसे बात करके you feel so good that you realize that human relationships are valued, and whatever people say about this industry, that people are cruel, they trample. No. यहाँ पे there are people like you who had genuine relationships, genuine friendships, and it's been a pleasure talking to you. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like, subscribe, and share with people who you think will benefit from listening to these conversations. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.